tools, technique and solutions, है ना? तो without any delay, we are starting this workshop. So first of all, we will know exactly what is the plagiarism and how we will detect it, and how the AI tools will help you to detect the plagiarism. Okay, so we will learn step by step. First of all, uh, we will understand exactly what is the plagiarism. You know, I think everyone know about the. So first of, tell me ke how many people from the universities or another profession. Tell me, chat box, in how many people from the educational institutions. Write in chat box how many people from the universities or colleges or. So myself, Kamala Devi from Teacher Education College from Salem, Tamil Nadu. Yes, okay, thank you, ma'am, thank you. I write the chat box how many people from the higher education institutions. Okay, 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 okay. Teacher from college. Okay, okay, thank you very much, thank you very much your response. So okay, so I think the most of the peoples from the higher educations, from the higher education, I think everyone know about the plagiarism. You know, actually plagiarism is very, very hot topic. It is very, very important topic who are doing the research, or they are the teachers, है ना? तो whenever if you are the author, अगर आप author हैं, teachers हैं, और students हैं, research scholars हैं, so the plagiarism is very, very important for you, because if you are the teachers, you can write whenever you are write the any book, any articles, the plagiarism is very, very important. If you are researcher, it is also very important, and you are teacher, it is very important for the all educational and professional peoples. So first of all, we will learn, understand actually exactly what is the plagiarism very fastly. We will do in the very fastly in theoretical part. After that, we will do the practical. You know. तो एक्चुअली व्हाट इज द प्लेजरिज्म एक्ट? प्लेजरिज्म इज द एक्ट. एक्ट कैसा एक्ट है? वो एक एक्ट है, ऐसा एक्ट है जब कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति, या कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के लिटरेचर को अपना लिटरेचर बना के पेश करता है, दैट इज कॉल्ड द प्लेजरिज्म. है ना? कोई आइडिया है, कोई काम है, अगर वो उसको मतलब चोरी कर लेता है, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चोरी करता है, इन हिंदी वी कैन से द प्लेजरिज्म यूज्ड एज साहित्य चोरी. The plagiarism word used as a साहित्य चोरी. साहित्य चोरी mean it is a literature, है ना? It's a concern of the literature. Whenever the everyone want to जो भी दूसरे के लिटरेचर को चोरी कर रहा है, वो क्या कहता है? वो प्लेजरिज्म कहलाता है. ठीक है? विदाउट विदाउट उसके प्रॉपर कंसेंट दिए हुए, विदाउट उसके बारे में मतलब साइटेशन देने के लिए, उससे बिना कंसर्न किए हुए, उसकी बिना परमिशन लेके उनके लिटरेचर को वेन एवर एवरी वन विल यूज द अपने आर्टिकल बनाकर अगर यूज करता है, तो वो क्या कहलाता है? वो बेसिकली प्लेजरिज्म की कैटेगरी में आता है. अब बेसिकली प्लेजरिज्म क्या क्या, प्लेजरिज्म में क्या क्या चीज इंक्लूड है? कॉपिंग टेक्स्ट verbatim without the citations. Okay, paraphrasing someone's work without the proper attribution. Attribution mean उनकी मतलब रजाबंदी, उनकी रजाबंदी के बिना अगर आप उसके किसी भी वर्क को आप पैराफ्रेस करके अपनी लैंग्वेज बना के उसके काम को अगर आप यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्लेजरिज्म. रीयूजिंग द reusing of one's on previous work, self plagiarism without the proper acknowledgement. अगर आपने कोई किताब लिखी है ऑलरेडी, या कोई रिसर्च पेपर लिखा है, और उस रिसर्च पेपर को अगर आप अपने वर्क में शामिल करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू इंक्लूड द ऑल
थिंग इन योर वर्क, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर भी प्लेजरिज्म हो जाएगा, वो सेल्फ प्लेजरिज्म। आपने कोई बुक लिख दी, अब बुक पब्लिक डोमेन में आ गई, जब पब्लिक डोमेन में बुक आ गई और उस बुक से कोई रेफरेंस अगर आप ले रहे हैं, तो आपको उस बुक्स में आपको उसका साइटेशंस देना पड़ेगा कि ये बुक आपकी है। ये नहीं है कि कोई बुक आपने लिख दी और उसको आपने फिर से दोबारा से कॉपी करके लिख दिया कि ये तो मेरा मेरा काम है, आई कैन डू इट। नो, वो जब पब्लिक डोमेन में चली गई, अगर बुक पब्लिश हो गई, आर्टिकल पब्लिश हो गया, तो आपको अपनी किसी भी आर्टिकल्स में उसके साइटेशंस को लेना ही पड़ेगा, तो वो प्लेजरिज्म नहीं कहलाएगा। अगर आपने उसके साइटेशन को नहीं लिया तो वो क्या होगा, प्लेजरिज्म की कैटेगरी में आएगा। तो इट्स अनएथिकल। अब जाहिर सी बात है, अनएथिकल तो है। मिसप्रेजेंटेशन द ट्रू ऑथर ऑफ द वर्क वायलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ द एकेडमिक एंड प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। ठीक है ना, तो ये क्या अनएथिकल है भाई, किसी भी काम के लिए आप ले, किसी भी काम के उस विदाउट कंसर्न द एनीवन, आप उसके काम को अपना काम बना के मतलब प्रेजेंट कर रहे हो, तो ये भी अनएथिकल और वायलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ द एकेडमिक प्रोफेशनल इंटीग्रिटी है ना। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो इसमें यूजीसी के कुछ रूल्स है ना, कॉपीराइट एक्ट के रूल्स है, वो लोग वी विल डिस्कस द नेक्स्ट, है ना, वो सारी चीजें। अब इसका क्या, जब जब प्लेजरिज्म होता है, तो प्लेजरिज्म जब होता है, जब कोई प्लेजरिज्म किसी भी यूनिवर्सिटीज में या कहीं पर प्लेजरिज्म पकड़ा जाता है, तो उसकी क्या 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 मतलब सजा होती है, उसके लीगल एंगल्स क्या होते हैं, वो सारा हम लेकिन लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं द कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। द एकेडमिक पेनल्टीज क्या होता है, फेलिंग द ग्रेड, सस्पेंशन, एक्सपल्शंस, प्रोफेशनल रिpercussions, लॉस ऑफ द क्रेडिबिलिटी, लिटरेशंस ऑफ द वर्क एंड पोटेंशियल ऑफ द लीगल इश्यूज, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा प्रैक्टिकल, हम लोग बात प्रैक्टिकल पे ज्यादा गौर करेंगे और इस पर हम थोड़ा सा काम करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। ओके, तो अब ये क्या है, अब हमने क्या कर लिया, अब हमने समझ लिया व्हाट इज अ प्लेजरिज्म। ठीक है ना, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि प्लेजरिज्म के जो हम लोग पढ़ेंगे ना, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम इसमें पढ़ेंगे डिफाइन द प्लेजरिज्म, एक्सप्लेन हाउ टू रिलेट द एकेडमिक इंटीग्रिटी, आइडेंटिफाई सम ऑफ द मेन टाइप्स ऑफ द प्लेजरिज्म, है ना, लिस्ट ऑफ द सम पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द प्लेजरिज्म एंड हाउ टू एआई टूल्स फॉर द प्लेजरिज्म डिडक्शंस। ठीक है, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। डेफिनेशंस क्या है, डेफिनेशंस दा है, प्लेजरिज्म इज द एक्ट ऑफ द यूजिंग समवन एल्स वर्क, आइडिया और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विदाउट द proper acknowledgement or permission, presenting it is at your own, it is considered as a serious ethical and academic offense। ये प्लेजरिज्म की डेफिनेशन से जो दी गई है। ठीक है ना, एकेडमिक इंटीग्रिटी है, उसके बाद टाइप ऑफ प्लेजरिज्म है ना, टाइप ऑफ प्लेजरिज्म के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो टाइप ऑफ प्लेजरिज्म क्या है, तो देयर इज अ फोर टाइप ऑफ द प्लेज वी विल डिस्कस हियर। द फोर टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म, फर्स्ट प्लेजरिज्म द डायरेक्ट प्लेजरिज्म। तो डायरेक्ट प्लेजरिज्म क्या होता है, द कॉपिंग टेक्स्ट वर्ड टू वर्ड फ्रॉम द सोर्स विदाउट द कोटेशन मार्क टू द प्रॉपर साइटेशंस। तो ये क्या होता है, डायरेक्टली आप किसी भी के कंटेंट को अपना कंटेंट बना रहे हो, वो डायरेक्ट प्लेजरिज्म कहला जाएगा। इसका क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कॉपिंग ए पैराग्राफ फ्रॉम द रिसर्च आर्टिकल इनटू एन ऐसे विदाउट द साइटिंग द ओरिजिनल सोर्सेस। ठीक है ना, डायरेक्ट क्या कहलाता है, कोई किसी से आप ले रहे हैं, कहीं से कोई भी ले रहे हैं, लेकिन उसका आप साइटेशंस नहीं दे रहे, तो वो क्या कहलाता है, वो डायरेक्ट प्लेजरिज्म कहलाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ओरिजिनल सोर्सेज, द रैपिड ग्रोथ ऑफ द टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म कम्युनिकेशंस ऑफ द प्लेजराइज, क्या हो गया, द रैपिड ग्रोथ ऑफ द टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म द कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या करोगे, इसमें इलस्ट्रेशंस जो दिया है, इसमें आपने समझने की चीज इसमें ये कि आपने इसमें किसी का भी सोर्स नहीं दिया है और आपने वो कोटेशंस को उसी की तरह वैसे की जैसे एज इट रख दिया है। ठीक है, लेकिन आपने इसमें किसी का सोर्स दिया, अगर इसमें किसी का आप सोर्स देते कि दिस इज
टेकन बाय फ्रॉम दिस, तो ये क्या होता है, तो ये फिर ये प्लेजरिज्म की कैटेगरी में नहीं आता। जब भी प्लेजरिज्म के रूल्स को, प्लेजरिज्म को अवॉइड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप अपने जहां से भी साइटेशन ले रहे हैं उसका रेफरेंस जरूर आपको वहां पर देना है, ठीक है। द सेकंड वन इज द सेल्फ प्लेजरिज्म। सेल्फ प्लेजरिज्म के बारे में बात हमने की कि कोई फॉर एग्जांपल वी हैव द पब्लिश ए बुक, है ना, आर्टिकल या बुक है हमारी, तो रीयूजिंग द on once on previously published or submitted work without the acknowledgement that it is being used before, ठीक है ना। तो ये मतलब आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ये ऑलरेडी यूज नहीं किया गया, तो ये अब सेल्फ प्लेजरिज्म भी कहलाता है कि आपने अपनी ही किताब से, अपने ही कंटेंट से, अपने ही वर्क से आपने कंटेंट को ले लिया, ठीक है ना, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, सबमिटिंग ए पेपर दैट वाज द ऑलरेडी टर्न इनटू द डिफरेंट क्लास और रीपब्लिशिंग द सेम रिसर्च फाइंडिंग विदाउट द साइटिंग ओरिजिनल वर्क, ठीक है ना। उस इलस्ट्रेशन क्या है, इलस्ट्रेशन मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की गई है इलस्ट्रेशन के जरिए, यूजिंग ए चैप्टर फ्रॉम योर प्रीवियस थीसिस इन ए न्यू जर्नल आर्टिकल विदाउट द स्टेटिंग that it was a previously published, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सेल्फ पब्लिशिंग हो गया। और अब दूसरा मोसेक प्लेजरिज्म, ये क्या होता है, बोरोइंग द phrases from the source without the using quotations mark as a mixing borrowed material with the original work without the proper credit, ठीक है ना। कोई आपने अगर क्या कोई पिक्चर्स ली है कि कोई और भी कोई चीज ली है बिना उसके ऑथर के कंसर्न लिए हुए, वो जो चीज पैराफ्रेज आप कोई पैराग्राफ ले रहे हैं या आप कोई कोटेशन ले रहे हैं ना, उसमें किसी का नाम नहीं है, ठीक है ना, तो ये मौजी। उसके बाद है, ठीक है, तो अब ये क्या है, forgetting the includes a citation for the paraphrase idea और citing a source improperly, ठीक है ना। को improperly जब आप उसको insert करते हैं, paraphrasing a concept from the article but missing the in text citations leading to the impression that is the original work, okay, ये हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, अब इसके अलावा क्या है, एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। तो एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म क्या है, द एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म ऑकर व्हेन द स्टूडेंट unintentionally fail to the give the proper credit sources, है ना, वही जो आप चाहते हैं आपको पता भी नहीं है क्या हो गया, कैसे हो गया, कहाँ हो गया, तो उसको जब इंसिडेंटली जब कोई चीज आ जाती है उसको हम एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म कहते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस कैन बी हैपन थ्रू द पुअर पैराफ्रेसिंग, copying the text directly without the using quotation marks, ठीक है ना, citing sources incorrectly or forgetting the include citations altogether. Despite the lack of the intent of the deceived, accidental plagiarism is still considered a violation of the academic integrity and can have serious consequences. Okay, तो ये क्या होता है, ये एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। ऑडियो प्रॉब्लम है, ऑडियो प्रॉब्लम है ये, और किसको है, ऑडियो नॉट क्लियर सर। No, sir, it is very clear here. Sir, my research guide I unable to join the meeting sir, was the message is the WhatsApp group, please check sir. Okay, it is very clear. Okay, well, thank you very much, okay. So it is clear, there are the four kind of the plagiarism detections, okay. So the another one is, now we will discuss about the penalty of the plagiarism. तो जब हम प्लेजरिज्म की बात करते हैं, whenever we are talking about the plagiarism, तो we should understand, we must understand exactly कि what will the happen when we are using this plagiarism, है ना।
तो द एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जब क्या होता है, जब हम प्लेजरिज्म की प्रॉब्लम होती है, प्लेजरिज्म रिपोर्ट होता है, या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या होता है जो प्लेजरिज्म में रिपोर्ट होता है, वो सारी चीजों का लीगल हम कंसिक्वेंसेस आपके सामने यहाँ पर बताएंगे कि किस तरह से होता है, ठीक है। तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में बेसिकली क्या होता है, द वार्निंग एंड री री रिप्रेमेंट्स, ठीक है। तो क्या होता है जब कोई प्लेजरिज्म का केस आता है फॉर द फर्स्ट टाइम और माइनर ऑफेंसेस, स्टूडेंट माइट रिसीव द वार्निंग और फॉर्मल रिप्रीमेंट्स, यानी उससे कहा जाता है कि ये आपकी प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम्स को आप दूर कर लीजिए और ये प्लेजरिज्म की प्रॉब्लम है, अगर इस प्रॉब्लम को आपसे दूर नहीं किया तो आपके वर्क को क्या किया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज है ग्रेड पेनल्टीज। तो प्लेराइज वर्क कैन रिजल्ट द फॉलोइंग ग्रेड फॉर द असाइनमेंट फॉर द इंटायर कोर्स, यानी असाइनमेंट है या कोई आपका रिसर्च वर्क है ना, तो वहां पर क्या होता है, एक जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, भाई टीचर्स ने क्या क्या दिया, अभी आपने देखा कि टीचर ने देखा कि यार इसने ना जो स्टूडेंट्स है उसने बेसिकली बहुत सारी मतलब उसमें उसके जो लिटरेचर में है ना, उसके कंटेंट में प्लेजरिज्म की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसको क्या करता है, उसके ग्रेड को कम कर सकता है कि भाई इसने कहीं से भी चोरी, भाई चोरी तो चोरी होती है, चाहे वो नॉर्मल चोरी हो चाहे वो किसी भी चोरी। सस्पेंशन और एक्सपल्शन, repeated the served cases can be lead the suspension or expulsion from the institution। जब किसी भी स्टूडेंट से या किसी भी जो एकेडमिक जो टीचर्स से, उनकी बात बाद में करेंगे, तो पहले हम स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं कि जब whenever the institutions has the given the bar warning of the students or any person कि आप इसको हटा दीजिए, अगर इन केस उसने प्लेजरिज्म को नहीं हटाया तो उसमें क्या होता है, द प्रोविजन the institutions have right to suspend the research scholar or students or जो revocations of the degree। और फिर उसके बाद ना in the extreme cases the degree previously awarded can be revoked if the plagiarism is discovered after the graduation, है ना। तो उससे कहा जाता है कि नहीं, आपके आपके जो कंटेंट में, आपके जो कॉन्टेक्स्ट में जो आपकी रिसर्च है, जो आपका वर्क है, वो आपके वर्क में बहुत ज्यादा प्लेजरिज्म पाया गया है, इसलिए आपसे यूनिवर्सिटी आपसे वो डिग्री वापस लेती है जो यूनिवर्सिटी ने आपको दी थी, ठीक है। एकेडमिक रिकॉर्ड इम्पैक्ट, तो प्लेजरिज्म कैन बी noted on the academic record affecting the future educational and career opportunity। जब कोई प्रोब्लम की प्रॉब्लम होती है तो जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको उसमें निगेटिव मार्क्स, निगेटिव देते हैं और ऐसा लिख देते कि इनको ये प्रॉब्लम हुई थी, प्लेजरिज्म की प्रॉब्लम हुई थी, तो क्या कर सकता है, जिससे आपके जो कैरियर पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है आने वाले वक्त में, ठीक है। जब और दूसरी चीज क्या है, अब दूसरी है प्रोफेशनल कॉन्सिक्वेंसेस। प्रोफेशनल क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब तो ये तो एकेडमिक हो गई, इंस्टीट्यूशन ने स्टूडेंट के बारे में। अब प्रोफेशनल, जब आप टीचर्स हैं, आप जब टीचर्स हैं, जब टीचर बन जा रहे हैं और जब आप सारी चीजें कर रहे हैं, तो क्या क्या होता है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जॉब टर्मिनेशन। वेरेवर द एम्प्लॉय फाउंड द गिल्टी ऑफ द प्लेजरिज्म मे फेस द टर्मिनेशन, ठीक है। तो इसका सस्पेंशन नहीं है, जो भी अगर टीचर्स है और वो इन्वॉल्व पाया गया, ये प्रूव हो गया कि यार ही इज ए गिल्टी ऑफ द प्लेजरिज्म, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट उसका टर्मिनेशन होगा, नॉट ए सस्पेंशन, ओके। तो लीगल एक्शन उसके ऊपर क्या हो सकता है, प्लेजरिज्म के अंदर रिजल्ट इन द लॉसूट एंड फाइनेंशियल पेनल्टीज, स्पेशली इफ द कॉपीराइटेड मटेरियल इज इन्वॉल्व। उस पर क्या हो सकता है, एक लीगल एक्शन हो सकता है, उसके खिलाफ कोर्ट में केस जा सकता है, ठीक है। लॉस ऑफ द रेपुटेशन, और क्या होता है, क्या हो रहा है, और फिर उसके बाद जो भाई आपको समझ में आ गया कि भाई आपने प्लेजर में आपने कोई किताब आर्टिकल्स लगाया, तो क्या होता है, आपकी जो कम्युनिटी होती है, आपका इंस्टीट्यूशंस होता है, आपके कलीग्स होते हैं, उनमें आपकी एक रेपुटेशन क्या होती है, रेपुटेशन लॉस होती है ना। लोग देखते हैं अरे यार इन्होंने तो ऐसा किया था, है ना। और प्रोफेशनल सैंक्शंस, कि जब जब इस तरह की चीज होती है तो हमारे जो प्रमोशंस होते हैं, प्रोफेशनल बॉडीज में इम्पोज द सैंक्शन इंक्लूड द रिवोकिंग द लाइसेंस और मेंबरशिप, ठीक है। तो वो क्या करती है, जो भी मतलब आपको लाइसेंस दिया गया है, जो भी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं, जो भी आपका प्रमोशन हुआ है, तो उसको क्या करते हैं, उसको वो रिवोक कर लेती है, ठीक है ना, उसको वापस ले लेते हैं कि नहीं नहीं आप हमें दीजिए और आपने जो काम किया है वो गलत किया है, ओके। तो ये सारी पेनल्टीज हैं, ठीक है ना।
प्रोफेशन। अब आते हैं कॉपीराइट पे, कि एक्चुअली स्टूडेंट कितने परसेंट आपके पास अगर प्लेजरिज्म आपके कंटेंट में, आपके आर्टिकल्स में, आपकी थीसिस में, आपके रिसर्च में है, तो क्या किसको क्या पेनल्टीज मिलती है, ये कॉपीराइट है ना। कॉपीराइट infringement, the plagiarism involving copyrighted material can lead a legal actions under the Copyright Act 1957। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये समझने की चीज जरूरी है कि यहाँ पर दिया है कि ये प्लेजरिज्म में ना, ये किस में आ रहा है, कॉपीराइट एक्ट 1957 के अकॉर्डिंग। जब आप पे कोई लीगल एक्शन होता है, जब आपको जब आपको जब आप कोई इन्वॉल्व पाए जाते हैं प्लेजरिज्म के केस में, देयर विल बी द इम्प्लीमेंट ऑफ द अंडर सेक्शन द एक्शन अंडर द कॉपीराइट एक्ट। कहां पर क्या होगा, द लीगल एक्शंस अंडर द कॉपीराइट एक्ट। तो यहां पर कॉपीराइट एक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, ए फाइन एंड इम्प्रिजमेंट अप टू द 3 ईयर। यानी आपको ये साबित हो गया कि आपने अपने कंटेंट में प्लेजरिज्म का यूज किया है, प्लेजरिज्म है, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है। देयर विल बी द फाइन्स एंड इम्प्रिजमेंट अप टू द 3 ईयर। यानी 3 साल तक की सजा हो सकती है अगर आपके कंटेंट में प्लेजरिज्म की प्रॉब्लम है तो। ठीक है। अब पेनल्टीज अंडर द यूजीसी रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, यूजीसी रेगुलेशन जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या पेनल्टीज है, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज स्पेसिफाइड रेगुलेशन फॉर द प्लेजरिज्म इंक्लूड्स। क्या क्या उसने कहा कि अगर आपके रिसर्च पेपर में, आपकी थीसिस में, आपकी बुक में 0 से 10% ना अगर प्लेजरिज्म है तो देयर इज ए नो पेनल्टीज। ठीक है, तो वो उसको माना जाएगा कि वो जो आपका काम है वो काम सही है। क्योंकि वेन एवर वी आर यूजिंग द सेंटेंसेस, तो वहां पर बहुत सारे सेंटेंसेस तो बहुत बार रिपीट होते हैं, तो बहुत बार रिपीट होते हैं। तो आप जब इसके प्लेजरिज्म को चेक करेंगे, तो मतलब एआई टूल से चेक करेंगे, तो उसमें बहुत सारी चीजें प्लेजरिज्म आ जाती है। तो इसीलिए यूजीसी की गाइडलाइन है कि 10% तक अगर आपके पास आपके उसमें प्लेजरिज्म की प्रॉब्लम है तो वो आपका काम प्लेजरिज्म नहीं माना जाएगा। लेकिन लेवल वन कह रहा, द सिमिलरिटी अबव द 10 to 40%। कहां पर 10 to 40% है, तो क्या हो जाएगा, आपसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, द सबमिशन ऑफ द रिवाइज पेपर, कि जो आपने आपके पेपर्स में जो प्रॉब्लम्स है, जो प्लेजरिज्म है, उसको क्या करो, उसको सही करो, उसको ठीक करो, उसको रिवाइज करो। ठीक है ना। तो आपको एक वार्निंग इश्यू की जाएगी इंस्टीट्यूशन की तरफ से, है ना, गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी जहाँ भी आप काम कर रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन द लेवल सेकंड इज वेरी टफ फॉर यू, नॉट फॉर यू एवरीवन। in the level second whenever you go to the level second, there will be the similarity of the 40 to 60%। यानी आपके पास 10% तक देयर इज नो पेनल्टी, और आप 10 to 40% देयर विल बी द इंस्टीट्यूशन से कि आप इसको रिवाइज कर दो। ठीक है, और रिवाइज करके सबमिशन करो। लेकिन अगर आपके पास किसी स्टूडेंट के पास उसकी रिसर्च में से 40 to 60% सिमिलरिटीज आ जाती है, तो इंस्टीट्यूशन विल बी टेकन अगेंस्ट हिम और हिज हर। ठीक है, तो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, सजा क्या करेगा, डिबारिंग फ्रॉम द सबमिटिंग ए रिवाइज पेपर 1 ईयर। ठीक है ना, 1 साल के लिए उससे ये कह देगा। और लेवल थर्ड में क्या कहेगा, द सिमिलरिटी 60% of the cancellations of the registration। यानी आपका द एडमिशन विल बी कैंसिलेशन, है ना, एडमिशन विल बी कैंसिल्ड। ठीक है ना, क्या होगा, एडमिशन बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। और सेकंड पोजीशन में क्या किया जाएगा, उसको डिबार कर दिया जाएगा। लेकिन द थर्ड लेवल देयर विल बी द इम्प्लीकेशंस के क्या हो जाएगा, उसका पूरा एडमिशन ही कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो ये क्या है, स्टूडेंट के लिए।
अब स्टूडेंट के साथ साथ अब हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं जो हमारे टीचर्स हैं, उन टीचर्स के लिए क्या क्या यही जो एक्ट है क्या कहता है, एक्ट क्या कहता है, एक्ट कहता है ये, द नेक्स्ट वन इज, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज, अब क्या कह रहा है, अच्छा ये जो जो हमारे पास एक्ट तो वही है, ये एक्ट तो वही है, कॉपीराइट एक्ट 1957, ठीक है, इंक्लूड इम्प्रिजमेंट अप टू द 3 ईयर, ठीक है, 3 साल तक की सजा का प्रावधान है इसमें भी, पेनल्टी ऑफ द रेगुलेशंस वही है, ठीक है। अब ये स्टाफ अब किसके लिए, अब ये फैकल्टी, स्टाफ एंड रिसर्चर्स के लिए क्या कह रहा है, नॉट ए स्टूडेंट, रिसर्चर के लिए क्या कह रहा है, रिसर्च के लिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आपकी 0% द सिमिलरिटी अप टू द नो पेनल्टीज, अब वहां पर अब नेक्स्ट वन, द सिमिलरिटी ऑफ द, ये क्या लेवल 1 पे कह रहा है, लेवल 1 पे कह रहा है सिमिलरिटी एबव द 10 to 40% विथड्रॉल द मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है ना। तो उसने वहां पर कहा, स्टूडेंट्स के कहा कि भाई आप उसको रिवाइज करके सबमिट कर दो, लेकिन उसने कहा कि नहीं, आप यहाँ से अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को विथड्रॉल कर लो, ठीक है। अगर उसने कहा कि वो अगर किसी एकेडमिक पे, एकेडमिक लेवल द सिमिलरिटी एबव द 40 to 60%, द विड्रॉल ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट एंड बारिंग फ्रॉम द पब्लिशिंग एनी वर्क 2 ईयर, यानी क्या हो जाएगा, उससे क्या होगा कि आप पहले तो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को विड्रॉ कीजिए, उसके बाद उसके कोई भी काम को 2 ईयर्स के लिए बैन कर दिया जाएगा, दीवार कर दिया जाएगा, कि वो 2 साल तक कोई भी अपना काम क्या कर सकता है, ही कैन नॉट पब्लिश हिज और हर वर्क, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है ना। द लीगल एक्शन 3, द सिमिलरिटी ऑफ द 60%, अब देखिए यहाँ पर क्या करा, 60% सिमिलरिटी क्या कहा, विथड्रॉल ऑफ द manuscript bearing from the publishing and work of the 3 years and possible dismissal of the institution। तो यहां पर क्या कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, यहां पर क्या गया, लेवल 3 में क्या कर देगा, उसने कहा कि लेवल वहां पर क्या कर रहे थे स्टूडेंट का, उनका एडमिशन कैंसिल कर रहे थे, यहाँ पर फैकल्टी मेंबर को डिसमिसल भी कर डिसमिसल कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, 3 साल के लिए उसके पब्लिशिंग वर्क को पर बैन कर रहे हैं ना, दीवार कर रहे हैं, उसके क्या कर रहे हैं, दीवार कर रहे हैं, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। और उससे ये कह रहे हैं कि आपको पॉसिबल टू डिसमिसल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशन से क्या कर दिया जाएगा, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो ये लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ द उसके प्लेजरिज्म के हैं। अगर प्लेजरिज्म प्रूव हो जाता है आपके किसी भी बुक्स में, पब्लिशिंग जो भी काम है बुक्स में, ठीक है, आपके किसी भी बुक्स में, आर्टिकल्स में, रिसर्च में, जो भी है ना। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ठीक है। अब हम यहाँ पर तो ये क्या, लो सिमिलरिटी परसेंटेज, if the similarity percentage is low, the suggest that your work is original, ठीक है ना, जैसे हमने वहां पर बताया। तो अब उसने कहा कि जो भी आपके में सिमिलरिटी परसेंटेज क्या, सिमिलरिटी लो है, your work is original, however it is important to review specific matches, ensure there are no unintentional substance plagiarism, high similarity percentage है, high similarity, ठीक है ना। तो a percentage warrant closer examination, check the specific matches, determine if the legislative citations or instance of the plagiarism, if the matches of the legitimate ensure that you have the properly cited the sources, ठीक है। false positives, sometimes the plagiarism detection tools may incorrectly identify original content as the plagiarized, this is known as the false positive, ठीक है ना। if you believe that the match is the false positive, carefully review the content and positive provide the evidence support the claim, okay। तो अब नेक्स्ट वन क्या है, अब अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, और हम ये जानना चाह रहे हैं कि हम लोग कौन कौन से टूल्स मार्केट में है, लेकिन हम यहाँ पर 2-3 ही टूल्स, बहुत सारे टूल्स को प्रैक्टिकली तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ
हम कुछ टूल्स को प्रैक्टिकली कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो टूल्स है यहाँ पर कौन कौन से टूल्स है, ठीक है ना। जैसे ये कौन सा है, टर्निटिन तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है लेकिन थोड़ा कॉस्टली है, इसको हर कोई नहीं कर सकता। हर जो हमारे पास जो लोग टीचर्स हैं, है ना, उनको प्रॉब्लम, मतलब टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, वो इसका यूज़ नहीं कर सकते। ग्रामरली, ग्रामरली भी फ्री है लेकिन बहुत ज़्यादा फ्री नहीं है, ये कुछ वर्ड देता है ग्रामरली लेकिन इतना ज़्यादा बाद। जो टेक्स्ट है, ठीक है ना, कॉपी स्केप है, प्ले स्कैन है, स्मॉल सीओ है, डुप्ली चेकर है, प्रिज्म चेकर एक्स है, स्क्राइबर है और ऑथेंटिकेट है, ठीक है। तो इस तरह के ये है। लेकिन हम जो ये जो टूल्स हमने आपको बताए, क्योंकि ये टूल्स के बारे में भी आपको थोड़ा कुछ जानना चाहिए कि इस तरह के टूल्स भी अवेलेबल है मार्केट में जो प्लेसमेंट पर काम करते हैं। लेकिन लेकिन इन टूल्स के साथ हम लोग जो प्रैक्टिकल वर्क करने वाले हैं, हम लोग उसकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो हम किस किस की हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने वाले हैं इन टूल्स की जो हमारे पास स्क्रीन पे है। कौन कौन से हैं, ट्यूल बोर्ड है, जीपीटी 0 है, ठीक है, क्यू टेक्स्ट है, ह्यूमनाइज एआई है, स्टील राइट है, कॉपी लीक्स एआई है, प्लेजरिज्म डिटेक्शंस है और अन अन अनडिटेक्टेबल एआई है। इनके हम लोग यानी 8 टूल्स है। तो 4 टूल्स का जो प्रैक्टिकल्स करेंगे तो हम यहाँ पर 4 टूल्स के बारे में आज हम बता देंगे आपको डे 1 में, ठीक है ना। और 4 टूल्स के बारे में हम लोग कल डे 2 के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम सबसे क्यूल बोर्ड लेते हैं, जीपीटी 0 और टेक्स्ट करेंगे, ह्यूमन एआई है, ठीक है। ये भी सारे टूल्स देखिए, क्यूल बोर्ड भी थोड़ा बहुत फ्री है लेकिन क्यूल बोर्ड बहुत महंगा नहीं है ना। तो 2500 रुपीज़ या 2500 रुपीज़ में आपको पूरी साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है और अच्छा टूल सही है, ठीक है। लेकिन जब टर्निटिन के बारे में बात करेंगे तो वो बहुत महंगा है। और जीपीटी 0 से आप फ्री में कर सकते हैं, ठीक है, जो अपने यूज के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं करते ये सब पैसे वाले। क्यों टेक्स्ट को भी इस तरह और ह्यूमन एआई भी है ना, ये ह्यूमनाइज एआई क्या है, ये भी बहुत अच्छा टूल्स है, ये हम इसको बहुत ज्यादा फ्री में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास 2 टूल्स ऐसे हैं, क्यूल एआई और ह्यूमन एआई। तो हम यहाँ पर 2 टूल्स हैं हमारे पास, एक एक तो ये हमारा टूल्स है, ठीक है ना। हमारे पास जो हम इस टूल्स के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कि हमारे पास 2 इसी तरह के टूल्स है। तो हमारे पास कौन सा टूल्स है, एक तो ये वाला टूल्स है हमारे पास, और इसके अलावा हमारे पास 0 या ये जीपीटी 0 है, और वो 0 जीपीटी टूल्स है, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाए, ये कर ले, या कर ले, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा टूल है, हमारा टूल है क्यूल बोर्ड। आई थिंक एवरीवन नो अबाउट द क्यूल बोर्ड। क्यूल बोर्ड के बारे में सभी जानते होंगे। कितने लोग क्यूल बोर्ड के बारे में जानते हैं, कितने लोग हैं क्यूल बोर्ड के बारे में जानते हैं, हाउ मेनी पीपल नो अबाउट द क्यूल बोर्ड। हम्म, यस, लिखिए चैट बॉक्स पे, लिखिए हाउ मेनी पीपल नो अबाउट द किलबोर्ड। कितने लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि किलबोर्ड भी कोई एक ऐसा टूल है जो प्लेजरिज्म डिटेक्शन का भी बहुत अच्छा। इतना ही नहीं, प्लेजरिज्म के डिटेक्शन के साथ साथ Excuse एआई me, डिटेक्टर sir. का भी काम। यस सर। Sir, please, could you please explain in English at least once because it is practical. We don't know यस यस, Hindi. And ओके then we can ओके, switch over to Hindi. At least वी one विल, time explanation in English. वी विल ट्राई, वी विल ट्राई, ओके 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 ओके। तो हाउ मेनी पीपल राइट इन चैट बॉक्स, हाउ मेनी पीपल नो अबाउट दिस कीवर्ड, how many people know about the keyword, just write yes or no, what is the, I know, yes, yes, Nilesh, no 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 no, yes yes yes, yes, Nilesh, only 2 people, 3 people, Hamlata is okay, no, okay. So okay, thank you for your answering. So first of all, we will go to the Google पे जाइए, whenever you are go to the Google,
ठीक है, go to the Google, there will be the Ql word, right? The Ql word. Ql word basically the paraphrasing tools which is very popular among the researchers and teaching community. So you can go the first link, Ql word. There will be the interface of the Ql word. Okay. So whenever first of all, there will be the uh, sign in button is here. Okay. So there is a sign in or sign up. Whenever you are sign in the first signing in the first time, you should the sign up after if you have the login, you will sign in. Okay. Go to the sign in. Sign in. There will be the you can log in through the your Gmail account, Facebook or Apple account, or you can go the login separately. So we have here Sir, the already login. sir, please share your screen. Okay, okay, just. So I think share is screen is sharing. Yes, sir, your screen has been shared. We can Okay, see your Quillbot. okay, okay. So whenever we are talking about the you go to the Google and search is the Ql word. After that, you come in sign in. In this button, you can sign in. You can sign in from the this button is here. है ना? You go to the and first is go to the sign. Whenever you will click here, and such type of the interface will be appear in front of you. So first of all, if you have the Google account, you can click from here. If you have the Facebook account, you can go from this. You have the Apple account, you go from there. And after that, if you have not any account, you can go the direct sign in, sign up the direct. Okay. So there will be the क्या करेगा वो आपसे मांगेगा यहाँ पर अगर आप करेंगे तो वो आपसे ये मांगेगा कि आप ई का ईमेल आईडी क्या है ठीक है व्हाट इज योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंड नेम और आफ्टर दैट यू कंटिन्यू गो टू देयर है ना तो वी हैव ऑलरेडी अकाउंट इज हियर तो जब वी हैव ऑलरेडी अकाउंट इज हियर तो गो टू द कंटिन्यू विद गूगल ठीक है व्हेन एवर गो टू द कंटिन्यू विद द गूगल so there is a 3 account appear here. First of all, we go to the our account is here the Bharat Digital Academy. Whenever go to the this account, the keyword is the open is here. ठीक है तो first of all the keyword ठीक है तो first of all there is a more things in the keyword so for example paraphrasing grammar checker plagiarism checker AI detector actually we are talking here about the AI detector and plagiarism so we will discuss it here is about the two part of the this tool first of the a plagiarism checkers and AI detector actually AI detector is the most and powerful tools for the any मतलब AI tools ओके तो एक्चुअली क्या होता है कि प्लेजरिज्म तो जो होता है ना प्लेजरिज्म चेकर ना बहुत सारी चीजों को नहीं पकड़ता लेकिन एआई डिटेक्टर क्या करता था एआई डिटेक्टर विल बी डिटेक्ट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम यू आर टेकिंग फ्रॉम द एनी एआई ओके तो हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो टू द कहाँ गए हम लोग हम क्यूल वोट पर जाते हैं ठीक है तो अब हम यहाँ पर आ गए यहाँ पर आकर हमने देखा
कि हमारे पास ना यहाँ पर साइड से लेफ्ट हैंड पे देयर इज ए ग्रामर चेकर, पैराफ्रेज, एआई डिटेक्टर, प्लेजरिज्म, समराइज, ट्रांसलेटर, साइटेशंस, क्यूलवोट फ्लो। ठीक है, अब हम क्यूलवोट फ्लो पर जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं, कहाँ, क्यूलवोट फ्लो पर जाते हैं, और इससे हम कुछ कंटेंट राइट करवाते हैं। ठीक है ना, क्या करवाते हैं, कुछ कंटेंट को हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। वी हैव द एआई टूल्स इज हियर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक 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 इंटरफेस खुलकर आ गया जिसका नाम है हमारा क्यूल फ्लो। ठीक है, तो हमने यहाँ से किया, हमने यहाँ से हमने यहाँ से इससे ये कहा कि आप रिसर्च पेपर लिख दो यहाँ से। अब रिसर्च पेपर क्या है, कोई आप कोई भी एक अपना एक टॉपिक बताइए। काइंडली टेल मी एनी टॉपिक वेट एवर वी कैन राइट हियर द रिसर्च पेपर इन क्यूल वर्ड, या चैट बॉक्स में राइट एनी पेपर टाइटल्स, यू कैन राइट एनी पेपर टाइटल्स फ्रॉम, if you have any paper titles, we can write here and search the material, search the content from here. किसी के पास कोई एक राइट, if you have any title for the research, okay, there is no problem. I think that there will there is no any titles. Okay, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव राइट हियर, हमने क्या लिखा, वी हैव राइट हियर किस चीज के बारे में, AI एंड impact of AI impact of AI in modern education. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ से क्या किया, एक एक रिसर्च पेपर को राइट कराया क्यूल बोर्ड से। द क्यूल बोर्ड विल बी राइट ए रिसर्च पेपर। अब राइट क्या कर दिया, रिसर्च पेपर क्या लिख दिया, इंट्रोडक्शंस एआई, है ना, ब्रीफ, ये सारी चीजें उसने कंटेंट हमें यहाँ पर लिख कर दे दिया, किसने, एआई ने, कि ये है। ठीक है ना, तो अब इस कंटेंट को क्या कर सकते हैं आप, यू कैन, अब आप यहाँ पर जो भी अगर आप चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशंस ऑफ एआई, यू कैन गो देयर और यू कैन राइट हियर। तो आपसे क्या कर लेगा, ये क्या कर देगा, तो ये क्या कर दिया, यहाँ से इसने एक आपको एक आर्टिकल का लिख के दे दिया, और आपको लिखने के साथ साथ आपको क्या बता दिया, आपको इसका साइटेशंस भी प्रोवाइड कर दिया। ठीक है ना, क्या कर दिया, आपको साइटेशंस भी प्रोवाइड कर दिया, और उसने लिख के भी दे दिया, क्या साइटेशन आपको, है ना, प्रोवाइड कर दिया उसने। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इस कंटेंट को यहाँ से लिया, और इस कंटेंट को ले जाने के बाद हम लोग कहाँ गए, हम क्यूल बोर्ड के, क्यूल बोर्ड के हम एआई डिटेक्टर पे गए। हमने यहाँ एआई डिटेक्टर पे पेस्ट किया ये, और पेस्ट करने के बाद नॉट ए एनफ टेक्स्ट टू एनालाइज, यानी अप्रोक्सीमेटली कितने वर्ड्स होना चाहिए, इसके वर्ड्स जो होना चाहिए वो आपके 80 वर्ड्स। ये कह रहा है नॉट एनफ टेक्स्ट टू द एनालाइज, प्लीज ऐड द 80 मोर वर्ड्स। कितने, 80 मोर वर्ड्स, यानी इसको हमने थोड़ा सा 80 मैक्स मिनिमम 80 वर्ड से उसको कर सकता है। ठीक है ना, तो हमने कुछ नहीं, हमने थोड़ा सा क्या किया, हमने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया, और यहाँ से हमने
ठीक है, हमने इसे 100 वर्ड्स में यहाँ से करवा लिया। अभी ये 100 वर्ड्स का कंटेंट विल बी अपीयर देयर। ठीक है, तो दिस कंटेंट जो हमने कंटेंट कहाँ से, हम पहले ये देखेंगे, ये कंटेंट बेसिकली एआई को डिडक्ट कर पाता है। एआई जो डिडक्शन टूल से वहां से लिया गया है, तो क्या ये क्यूलबोर्ड हमारे एआई को डिडक्ट कर पाता है? तो हम इसको एनालिसिस हियर करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर कह रहा है ये द क्यूलबोर्ड टेल अस, क्या बता दिया कि यहाँ पर जो भी आपका कंटेंट है वो क्या है, 100% एआई कंटेंट है आपका। ठीक है, अब ये क्या है, अब ये 100% एआई कंटेंट है। अब इस एआई कंटेंट को हमें ह्यूमनाइज कैसे करना है, यानी ये मशीन, दिस मशीन विल बी इंडिकेट कि देयर विल बी नो एनी एआई जनरेटेड कंटेंट इज हियर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू हियर, तो हमें यहाँ पर ये जो एआई टूल, जो हमारे पास जो क्यूलबोर्ड का एआई टूल्स है, वो करता क्या है बेसिकली, ये यहाँ पर पैराफ्रेसिंग का एक टूल दिया है। तो अब हम इस कंटेंट को क्या करते हैं, अब इस कंटेंट को हम ट्राई द पैराफ्रेज। अब हमने क्या कर लिया, इस कंटेंट को हम पैराफ्रेज करते हैं। ठीक है, पैराफ्रेज करने के लिए हमने यहाँ पर जब पैराफ्रेज किया, तो ये कंटेंट्स के बहुत सारा, इस कंटेंट की बहुत सारी लाइन को इसने पैराफ्रेज करने के बाद चेंज कर दिया। अब देयर इज अ लॉट ऑफ द बटन इज हियर। If you want to shorten, if you want to standard, if you want to fancy, if you want to natural, जो भी टोन में आप इसको चाहते हैं, there will be the action. For example, if you want to in this content in the standard, तो दिस कंटेंट विल बी अपीयर एज ए स्टैंडर्ड। ठीक है, इस वाले कंटेंट को हमने लिया और जब हमने पैराफ्रेज किया और इस कंटेंट को क्या किया, इस कंटेंट को हमने फिर से एआई से क्या किया, हमने फिर एआई से हमने चेक किया। तो अब ये देखिए क्या कहेगा, अब क्या बता रहा है ये, अब ये बता रहा है, अब ये बता रहा है एआई जनरेटेड एआई रिफाइंड, यानी हमने इस वाले कंटेंट को रिफाइंड कर लिया। यानी एआई से हमने लिया, एक हमने चैट जीपीटी से लिया, इसको जब हमने चेक किया तो ये इसने पकड़ लिया कि इसमें प्लेजरिज्म इसलिए है कि इसलिए जो कंटेंट है, दिस कंटेंट फ्रॉम गिवन फ्रॉम टेकन फ्रॉम द एआई टूल्स विच इज एआई टूल्स, फॉर एग्जाम्पल द वी आर यूजिंग द चैट जीपीटी। ठीक है, लेकिन जब हमने इससे पैराफ्रेज किया और पैराफ्रेज करने के बाद हमने इसको यहाँ पर जब इसके बारे में जाना, तो इसने ये कहा कि फिर से अब ये एआई जनरेटेड टूल्स तो नहीं, एआई जनरेटेड कंटेंट नहीं रहा, बल्कि क्या हो गया, अब ये जो हमारे पास कंटेंट हो गया, ये कंटेंट हमारे पास हो गया एआई जनरेटेड एंड एआई रिफाइन, क्योंकि हमने इसको रिफाइन कर लिया। पहले क्या था, इट वॉज द एआई जनरेटेड कंटेंट इज देयर, यहाँ पर क्या 0% हो गया और यहाँ पर 100% हो गया। लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर इस कंटेंट को यहाँ पर 100% में लाना होगा। जब हम इसको 100% में लाएंगे, तब ये एआई कंटेंट हमारा एआई जनरेटेड फ्री होगा। ठीक है, एक ऑप्शन ये भी है, ह्यूमन रिटिन एंड एआई रिफाइंड, है ना। तो ये कंटेंट, तो ये 4 ऑप्शन इज दियर। लेकिन जो हमारे पास सबसे लास्ट का ऑप्शन है, इस ऑप्शन में हमको इस कंटेंट को लाना पड़ेगा। कैसे लाना पड़ेगा, जस्ट सीट। ठीक है, फिर से हमने इस कंटेंट को कहाँ पर किया, हमने इस कंटेंट को फिर से पैराफ्रेज किया। ठीक है, हमने इस कंटेंट को फिर से पैराफ्रेज कर लिया। जब फिर से पैराफ्रेज हो गया, ये कंटेंट आ गया, तो हमने क्या किया, इस कंटेंट को फिर कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद फिर हमने चेक किया, अब देखिए अभी तक क्या था, अभी तक क्या था, अभी तक ये या तो एआई जनरेटेड आ रहा था या फिर एआई जनरेटेड एआई फ्रेंड था। लेकिन अब इसने यहाँ पर क्या कर दिया, अब इसने क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। और कैटेगराइज क्या कर दिया, कैटेगराइज क्या कर दिया इसने, यहाँ पर 43% ले आया, यहाँ पर 57% ले आया। ठीक है ना,
अब इस कंटेंट को हमने क्या किया, इस कंटेंट को कॉपी किया और हमने एक दूसरी एप्लीकेशन खोली जिसका नाम था, ठीक है, अब इसका नाम क्या है, ह्यूमनाइज एआई टैक्स, ठीक है ना। इस वाले हमने एक ऐप को खोला और हमने एआई टूल्स को खोला और एआई टूल्स को हमने क्या किया, यहाँ पर इसको हमने पेस्ट कर दिया, क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ से हमने क्या किया, ह्यूमनाइज कर दिया। तो इट विल बी टेक ए फ्यू सेकेंड्स इज हियर। यहाँ पर 97 वर्ड्स हैं, यहाँ पर कितना वर्ड्स आ गया, 110 वर्ड्स आ गया। हमने इस कंटेंट को कॉपी किया और इस कंटेंट को कॉपी करने के लिए हम क्यूल बोर्ड के उसी सेक्शन में गए जहाँ पर हमारा ये वाला जो कंटेंट आ रहा था, ठीक है ना। अब इस कंटेंट को हमने यहाँ पर पेस्ट किया और फिर से एनालिसिस किया। अब क्या था, अब क्या था, हमारे पास जो कंटेंट 100% और 50 और 47% आ रहा था, अब वो कंटेंट कितना परसेंट आया हमारे पास, ना तो एआई जनरेटेड कंटेंट आया है, ना एआई जनरेटेड एंड एआई रिफाइंड कंटेंट आया और ना एआई ह्यूमन कंटेंट आया है, और ना, और क्या आया है यहाँ पर, क्या आया है यहाँ पर, हमारे पास, हमें यहाँ पर 100% ह्यूमन रिटेन कंटेंट लाना था। तो ये ह्यूमन रिटेन कंटेंट अब तक क्या था, अब इसमें कह रहा था एआई कंटेंट है थोड़ा, अब ये क्या कर दिया, ये पूरा ह्यूमन क्या हो गया, ह्यूमन रिटन कंटेंट हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या कर दिया इसने, हमारा जो कंटेंट था उस कंटेंट को पैराफ्रेज करने के बाद हमको ऐसा कंटेंट ले आया जो 100% ह्यूमन रिटन है। यानी इस कंटेंट को कोई भी एआई का टूल्स नहीं बता सकता कि ये कंटेंट क्या है, ये कंटेंट एआई जनरेटेड है, ठीक है। तो क्यूल बोर्ड का हम इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये है क्यूल बोर्ड में, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हमारे पास ये कंटेंट है, इस कंटेंट को हमें क्या करना है, इस कंटेंट को हमने यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हमें यहाँ से क्यूल बोर्ड से कहना पड़ेगा है कि हमें प्लेजरिज्म चेकर, अब हम आते हैं, अभी तो एआई डिटेक्टर की बात हो रही थी, एक्चुअली एआई डिटेक्टर और प्लेजरिज्म चेकर इज द बोथ आर द डिफरेंट चीज। तो एआई का जो भी कंटेंट होता है वो प्लेजरिज्म डिटेक्टर नहीं पकड़ पाता। मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब हमने इस वाले टेक्स्ट को यहाँ पर पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पर स्कैन किया, ठीक है, यस स्कैन, ठीक है, स्कैन, ठीक है। तो हमारे पास 111 वर्ड्स हैं, ठीक है, हमारे पास ये स्कैन हो रहा है, ठीक है। स्कैन होने के बाद ये क्या करेगा, it will be take the few minutes, 1 and 2 minutes, ठीक है। तो ये स्कैन होगा, जब स्कैन होगा तो ये सारी जितनी भी इसमें प्लेजरिज्म की प्रॉब्लम्स होगी वो आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके देगा, और वो रिपोर्ट जनरेट करके देगा, ये आपको बताएगा कि आपका कंटेंट में प्लेजरिज्म कितना है, कितने परसेंट प्लेजरिज्म है। जब आप कुछ चीज आर्टिकल्स लिख रहे हो, कोई थीसिस कर रहे हो, तो वो क्या कर देगा, जब आपको समझ जाएगा कि आपके कंटेंट में कितने परसेंट का प्लेजरिज्म है, तो वो क्या हो जाएगा, आप उस प्लेजरिज्म को खुद से डिटेक्ट करके और इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपके उसमें कितना परसेंट डिडक्शन है, तो दूसरे के पास जाएगा तो ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, अब ये इसने क्या कर दिया, एआई क्यूल बोर्ड ने कर दिया, यहाँ पर आपके भी इसको प्लेजरिज्म चेकर में लेके चेक कर दिया। अब यहाँ पर व्यू रिपोर्ट दे दी, तो हम जब व्यू रिपोर्ट पर जाएंगे तो अब इसने देखो क्या क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये रिपोर्ट क्या दी थी उसने, रिपोर्ट दे दी कि आइडेंटिफाई माइनर, ये इसने 0% मैच किया, इसने क्या दिया कि ये जो फाइल है वो प्लेजरिज्म फ्री फाइल है, ठीक है ना। ये जो कंटेंट है इसमें प्लेजरिज्म है ही नहीं, ठीक है, क्या नहीं है, प्लेजरिज्म है ही नहीं, ठीक है। और वहां पर उसके बाद जाकर उसने क्या कर दिया, हमें यहाँ पर एक ये बता दिया, उससे बताने के बाद एक हमें रिपोर्ट तैयार करके दे दी। वो रिपोर्ट कहाँ है, हम लोग कहेंगे रिपोर्ट किधर, जैसे यहाँ पर जो है ना, यहाँ से हम लोग इसकी रिपोर्ट को हम यहाँ पर कहाँ गया, जस्ट मिनट, ठीक है। हम लोग यहाँ पर इसकी रिपोर्ट को कैसे है, रिपोर्ट यहाँ पर है, कहाँ है रिपोर्ट, देखिए ये जो है ना, यहाँ से हम लोग डाउनलोड करेंगे
वो रिपोर्ट आ जाएगी। एक चीज रिपोर्ट है, और एक चीज रिपोर्ट होने के बाद ये हमारे पास, ये हम और कहाँ से रिपोर्ट ले सकते हैं हम लोग, कहाँ से, एक रिपोर्ट यहाँ से आएगी, जैसे कि हमने जो अभी ये किया है ना, यहाँ से एक रिपोर्ट हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यानी वहां से भी और लिस्ट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये क्या है, ये डिलीटिंग का है, ये डाउनलोड का है। ठीक है ना, तो डाउनलोड, तो हम डाउनलोड करते हैं जो हमने हमने कब किया, हमने इसको कब किया, हमने 16 नवंबर 2000 के 11 AM पर, है ना, स्कैन कंप्लीटेड हो गया है। अब हम इसकी डाउनलोड करते हैं, किसको डाउनलोड करते हैं, हम इसकी रिपोर्ट को डाउनलोड करते हैं। तो रिपोर्ट विल बी डाउनलोडेड यार। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक इसकी रिपोर्ट डाउनलोड हो गई यहाँ पर। रिपोर्ट क्या है, ये हमारी डाउनलोड हो गई, लेकिन आपको ना वो रिपोर्ट दिख नहीं रही होगी, रिपोर्ट तो दिख नहीं रही होगी ना अभी, मैं शेयर करूंगा तब दिखेगी ये। ठीक है, तो ये डाउनलोड हमने कर दी, क्या कर दी, रिपोर्ट डाउनलोड कर दी। अभी रिपोर्ट डाउनलोड कर कर हम इसको ना थोड़ा सा शेयर करते हैं। तो अब दिख रही है रिपोर्ट, एक्चुअली क्यूल बोर्ड की रिपोर्ट दिख रही है ना आपको, रिपोर्ट इज विजिबल और नॉट। पहले भी दिख रही थी सर, अभी भी दिख रही है। ओके, तो अब क्या है, वी हैव एक्चुअली देयर इज ए रिपोर्ट, किसकी, क्यूल बोर्ड की रिपोर्ट है। अब क्यूल बोर्ड ने रिपोर्ट कर दिया, क्या रिपोर्ट दे दी हमें, ओवरऑल सिमिलरिटी स्कोर 0.0%, रिजल्ट फाउंड 0%, टोटल वर्ड्स इन टेक्स्ट कितना है 110। ठीक है ना, तो ये पूरा उसने आइडेंटिकल्स, माइनर चेंजेस, पैराफ्रेज, ओमिटेड। ओके, उसके अलावा रिजल्ट क्या दे दिया, रिजल्ट दे दिया उसने, क्या क्या दे दिया, the result includes any sources we have found the your submitted document that include the following intent, text, minor changes, text, paraphrase। ठीक है ना, तो ये पूरा उसने, this text is exactly same, minor changes, the text is nearly identical, yet the different from the words use either slow become the slowly। ठीक है ना, तो उसने कहा कि एक वर्ड जो है ना आपके उसमें, उसने एक बता दिया कि रिपोर्ट में तो एक वर्ड है वहां पर, उसमें ग्रामेटिकल थोड़ा सा मिस्टेक है, वहां पर वर्ड यूज या स्लो, लेकिन बेसिकली वो वर्ड क्या आना चाहिए, वो स्लोली वर्ड आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये एक रिपोर्ट दी। उसके अलावा क्या दिया है, अब योर टेक्स्ट हाईलाइटेड अकॉर्डिंग टू द प्लेजेंट टाइप ऑफ वेयर फाउंड बी शॉन। अब उसने क्या किया, यहाँ पर एक भी आपका ये बिल्कुल क्लियर है, क्लियर मतलब अगर आपके में प्लेजरिज्म होता तो वो क्या करता, आपको आपके कंटेंट को क्या कर देता, कंटेंट को आपके आइडेंटिफाई कर देता, जिससे कलर से, है ना, कैसे कर देता, कलर से आइडेंटिफाई कर देता वो। ठीक है ना, अब कैसे आइडेंटिफाई करता है मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ठीक है, अब जिस तरह से ये यहाँ पर कलरफुल में आ रहा है ना, वहां पर भी कलरफुल में आता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने इस वाले आर्टिकल को लिया, और इस आर्टिकल को लेने के बाद फिर से हमने प्लेजरिज्म चेक पर गए, और चेक पर करने के बाद हमने यहाँ पर पेस्ट किया, इसको कंटेंट को पेस्ट किया। ठीक है ना, अब तो ये बिना एआई वाला कंटेंट है ना, तो ठीक है ना, हमने पेस्ट किया और स्कैन किया यहाँ से। अब वहां पर कितने वर्ड हमने यूज किए थे, वहां पर हमने जो वर्ड यूज किए थे 111 वर्ड्स थे, यहाँ पर कितने 798 वर्ड्स थे। ठीक है ना, तो वो 798 वर्ड्स को स्कैन करने में थोड़ा सा टाइम लेगा। एक्चुअली मेरा ये आपको दिखाने का पर्पज ये है कि देखिए, जब हम किसी भी चीज में हमारे में प्लेजरिज्म हो रहा है ना, उस प्लेजरिज्म में क्या होता है ना, आपको आइडेंटिफाई कर देगा कि कितना परसेंट आपका कितना। वो तो हमने प्लेजरिज्म फ्री किया था क्यूल बोर्ड उससे, ह्यूमन एआई से, तो वो हो गया था। ठीक है ना, तो अब इसमें क्या है, इसमें ये क्या करेगा, इसमें कर रहा है कि भाई इसमें धीरे धीरे इसको पहले ये एनालिसिस करता है कि जो कंटेंट आपने दिया है वो कंटेंट कितना कितना प्लेजरिज्म है उसमें, कितना प्लेजरिज्म नहीं है। ठीक
ठीक है ना। तो वो जब कंटेंट जब एनालिसिस कर देता है, स्कैन कर देता है, तो देखिए अब ये स्कैन कर दिया यहाँ पर, अब ये कर दिया व्यू रिपोर्ट। अब व्यू रिपोर्ट हमने क्लिक किया। अब व्यू रिपोर्ट क्या किया, तो उसने कहा कि जो आपका 80.8% जो मैच कर रहा है, ठीक है ना। अब एक ये देखिए, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये सारा चीज मैच कर रहा है, ठीक है। ये मैच कर रहा है, तो ये क्या है, एआई डिटेक्ट। अच्छा एक चीज मैं बता दूं आपको, जैसे ये कंटेंट है ना, इस कंटेंट को आप जैसे कि उसने पूरे रिपोर्ट दे दी, रिजल्ट फाउंड 1, सिमिलर वर्ड्स 85 है ना, और मैच कितना 80%, ये यानी पैराफ्रेज करना है आपको, 8.1% को पैराफ्रेज करना है, और बाकी क्या है, उसने कहा कि सारा सही है। लेकिन व्हाट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसने ये कहा कि ये जो स्टोरी है यहाँ से अपनी ली गई है, जो उसने बता दिया पूरा। व्हाट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो आर्टिकल्स है, उस आर्टिकल्स के कुछ कुछ पार्ट्स को यहाँ पर लिया गया है, ठीक है ना, लिया गया, ये देखिए पूरा पूरा। लेकिन अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जो हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, एआई डिटेक्टर्स टूल और प्लेजरिज्म चेकर, तो दोनों अलग चीजें। एआई डिटेक्टर टूल्स क्या कर रहा है, एआई डिटेक्टर टूल्स कर रहा है कि आपका जो भी आपका एआई से आपने लिया है वो दे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस वाले, इसको हम अगर जो हमारे पास जो हमने यहाँ पर जो इसमें जो प्लेजरिज्म जो दिखा नहीं रहा है इसमें, लेकिन जब हम एआई के इस पे एआई डिटेक्टर पर जाएंगे, तो एआई डिटेक्टर क्या कर देगा आपको, यहाँ पर इस वाले कंटेंट को आपको देखो कितना एआई देगा, आपको 100% एआई बता दिया उसने कि ये एआई से लिया गया। लेकिन वहां पर क्या था, वहां पर प्लेजरिज्म क्या कर रहा है, प्लेजरिज्म चेकर ये नहीं बता रहा है कि इसमें से आपने क्या किया है, इसमें से आपने कितना परसेंट लिया गया, और ये कर रहा है कि आपका 8 पॉइंट मैच कर रहा है, और बाकी सारा आपका सही एज इट इज है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम एआई डिटेक्टर की बात करते हैं और प्लेजरिज्म चेकर की बात करते हैं, दोनों अलग चीज है। क्योंकि प्लेजरिज्म चेकर क्या होता है ना, बहुत सारी जगहों पर एआई टूल्स के कंटेंट को नहीं, उसको उसको नहीं डिटेक्ट कर पाता है ना। तो जब उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है तो क्या होता है, तो वो लगता है उसको सब ऐसा ही है। लेकिन एआई टूल्स क्या करता है, एआई टूल्स आपके आपके प्लेजरिज्म जो भी आपने एआई कंटेंट जो लिया गया है, उस एआई कंटेंट को क्या कर देता है, एआई कंटेंट को वो वहां से डिडक्ट कर लेता है। तो इसमें जो मेन डिफरेंस ये है एआई डिटेक्टर में और प्लेजरिज्म चेकर में, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करें, हमने यहाँ से कर लिया, या करने के बाद हमने रिपोर्ट की, हमने रिपोर्ट यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड की, और डाउनलोड करने के बाद रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड की रिपोर्ट हमने यहाँ से, ठीक है। अब तो डाउनलोड की देखिए ये रिपोर्ट आ गई, और रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट करने के बाद इसने क्या कर दिया, दे दिया, ये बता दिया, ये व्हाट इज द एआई आर्टिफिशियल, इसके बारे में बता दिया, ये कंटेंट दिया है। The text is nearly identical yet to the different from the words is used I is slow, ये चाहे पिछले वाला है, ठीक है ना, ये दूसरा है। अब ये देखिए, ये पूरा आपने बता दिया, ठीक है ना। अब ये पूरा उसने जैसे जैसे वहां पर आया था ना, ये देख कलर में, जैसे कलर में आया, ये कलर में आ गया, कलर में दे दिया उसने, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये कहा, जो भी कलर में जितने भी होते ना, ये कहने का मतलब है, वो ये कह रहा है, आपको इंडिकेट कर रहा है कि जो कंटेंट आपका है ना, इस कंटेंट को आप पैराफ्रेज कर सकते हैं, ठीक है ना। और पैराफ्रेज कर सकते हैं, और उसने एक एक आपको टूल्स एक आपको प्रोवाइड भी कर दिया, क्या प्रोवाइड कर दिया, एक लिंक भी प्रोवाइड कर दिया कि आप इसकी लिंक की मदद ले सकते हैं, ठीक है ना। दिस डॉक्यूमेंट इज आइडेंटिकल टेक्स्ट माइनर चेंजेस नेक्स्ट पैराग्राफ, है ना, टेक्स्ट। तो ये सारी चीजें आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये सारी चीजें हो गई। अब दूसरी चीज क्या है, अब इसके बारे में क्यूल बोर्ड के बारे में आप समझ होंगे, और ह्यूमन एआई के बारे में हमने समझाया, ठीक है। जो हमारे पास ह्यूमन एआई के बारे में हमने समझ लिया था, ठीक है। ह्यूमन एआई क्या है, ह्यूमन एआई भी था, एकदम फ्री है, बिना विदाउट लॉग इन किए हुए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन पैराफ्रेज योर कंटेंट हियर, है ना। तो आपको क्या कर सकता है, ये आपके
आइडेंटिफाई कर सकता है। किस चीज को आइडेंटिफाई करता है? आपके टेक्स्ट को आइडेंटिफाई कर सकता है ना। व्हाट इज अ ह्यूमन आई, पूरा डिटेल आपको दिया है, बस आपको कुछ नहीं करना है। या आपको यहाँ पर इसको यहाँ पर कोई भी कंटेंट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने कोई कंटेंट लिया, हमने इससे ये कहा कि कंटेंट कौन सा है हमारे पास। अ, हमने यहाँ से ये कंटेंट ले लिया, कौन सा कंटेंट ले लिया, ये कंटेंट ले लिया। ये कंटेंट हमने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ह्यूमन एआई पे गए हम लोग। ठीक है, ह्यूमन एआई पे गए, यहाँ पर हमने पेस्ट किया इसे। और पेस्ट करने के बाद हमने इसे ये किया, 742 वर्ड से इसको हमने ह्यूमनाइज कर दिया। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, इसने कंटेंट को अपना चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद अब यहाँ से देखिए, अगर हम जब चेक करेंगे क्यूल बोर्ड में, अब यहाँ पर क्यूल बोर्ड में देखिए वो लाएगा, कुछ थोड़ा सा डिडक्ट करेगा यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखिए कंटेंट को इसने क्या कर दिया, यहाँ पर एआई जनरेटेड कंटेंट बता दिया उसने इतना, और ह्यूमनाइज बता दिया इतना। ठीक है ना। तो इस कंटेंट को क्या करना पड़ेगा, इस कंटेंट को हमें हमें क्या करना करना पड़ेगा, इस कंटेंट को हमें फिर से पैराफ्रेज करना पड़ेगा। और पैराफ्रेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे सेंटेंसेस को चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारे स्ट्रक्चर को, जैसे कि स्ट्रक्चर जो दे रखा है ना, इसकी वजह से बहुत सारी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो हमने चैट जीपीटी से जैसे कि जैसा उठाया था वैसे ही इन्होंने क्या कर दिया। ठीक है, लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने फिर इसको इसको क्या कर ले, थोड़ा सा चेंज करने के बाद जैसे कि हमने हमने क्या किया, यहाँ से थोड़ा सा चेंज करने के बाद इसको यहाँ से कंटेंट उठाया। और कंटेंट उठाने के बाद हमने यहाँ से फिर से हम यहाँ पर गए और हमने कहा कि इससे एआई को हमें ह्यूमनाइज करना है। तो ये क्या कर देगा, हमने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद फिर से हम यहाँ पर क्यूल बोर्ड पे गए। ठीक है, ठीक है, क्यूल बोर्ड पे गए और फिर उसको एनालिसिस किया। अब देखिए, अब वहां पर क्या था, वहां पर हमारा 54% एआई जनरेटेड आ रहा था। यहाँ पर क्या परसेंट आ रहा है यहाँ पर इतने कंटेंट को हमने यहाँ से पैराफ्रेज किया था। इस कंटेंट को पैराफ्रेज करने के बाद यहाँ पर हमारा ह्यूमन रेटिंग कितना आ रहा है, 100%। यहाँ एआई जनरेटेड कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 0% एआई जनरेटेड आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम ह्यूमन एआई का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसके अलावा, ठीक है, तो दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है GPT-0 एआई डिटेक्टर टूल। ठीक है ना। ठीक है, ये थोड़ा सा पैसों वाला भी है और थोड़ा थोड़ा सा फ्री में देता है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो जिस तरह से हमने वहाँ पर किया था उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि हमें यहाँ पर क्या करना है, चैट जीपीटी, ह्यूमन एआई और एआई प्लस ह्यूमन। तो चैट जीपीटी क्या करता है, चैट जीपीटी भी वही है, आपको बस लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका क्या करना है, अच्छा ये है किस चीज का, ये है हिक्स हिक्स ना, बाईपास एआई हिक्स का है। ये अगर आप पैसे में लेंगे तो ये मिलेगा आपको, और लेकिन फ्री में जो थोड़ा बहुत यूज होती है। देखिए फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो ये जो हमारे पास जो कंटेंट है, इस कंटेंट को हम करते चेक फॉर ऑल एआई। ठीक है ना, हम इसकी सारी ऑल अपग्रेड नाम। ठीक है, अच्छा वो ये कह रहा है कि अपग्रेड ना हो, कह रहा है कि आप पहले से अपग्रेड कीजिए। अपग्रेड कैसे होगा, अपग्रेड करने के लिए आपको पैसे देना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग पैसा नहीं देते इसमें, तो ऐसा कर लेते हैं, हम इसको यहाँ से लॉग आउट करके यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, हम इसको साइन विथ
हम किसी दूसरे अकाउंट से खोल लेते हैं। ठीक, तो दूसरे अकाउंट से खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमें ठीक है। अगर हम वो करना चाहें तो क्रिएट अकाउंट चाहें तो क्रिएट करना, रिक्वेस्ट जेमो, ये पूरा। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है जो हमारे पास, अभी यहाँ से हमने स्कैन किया इसे। ठीक है, स्कैन करने के बाद क्या करा, वी आर अनसर्टेन अबाउट द दिस डॉक्यूमेंट इफ यू हैड ए ग्लेसी इट इज द कंसिडरेबल एआई जनरेटेड। तो अब उसने ये बता दिया कि जो आपका है ना, आपका जो कंटेंट है बेसिकली 37% ह्यूमन है और 0% मिक्स है, 83% एआई जनरेटेड है ये। ठीक है, 80%, 83% क्या है, 83% एआई जनरेटेड, इसने बता दिया। अब स्कैन हमने यहाँ से किया। ठीक है, वही चीज बता रहा है जो हमने वहां पर किया। अब इसको क्या करना है हमें, यहाँ से हमें चेक करके पता चल रहा है कि इसका जो लिमिट है वो है बेसिकली कितनी। ठीक है ना। ठीक है, तो हमें यहाँ पर भी उसने कंटेंट को, हम जो कंटेंट कर रहे हैं ना उसको हमने बता दिया उसने कि हमारा कंटेंट है क्या। अगर यहाँ से क्या है, डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ से अब होम है, यहाँ से न्यू करके आप कोई दूसरा, ठीक है, यहाँ से कोई दूसरी फाइल को यहाँ से क्या कर सकते हैं, यू कैन प्लेजरिज्म। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, प्लेजरिज्म के लिए क्या कह रहा है, 5 फ्री एडवांस स्कैन, यानी कि आपको उसमें पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है ना, पैसे भी, कुछ पैसे के भी कुछ फ्री के भी है। ठीक है ना, तो पैसे देना पड़ेगा, एआई वाला हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये थोड़ा सा बस इसमें ये समझना पड़ेगा, इसमें बहुत ज़्यादा, ये 19 के क्रेडिट, 10 के रिमेनिंग। ठीक है ना, तो अब ये यहाँ से जब भी हो ना, तो आप अब यहाँ से लॉग इन करके ना अपने प्लान को चेंज करने का, अपने उसको चेंज कर लीजिए। किसको चेंज कर लीजिएगा, अपने मतलब ईमेल आईडी को यहाँ से चेंज कर लीजिएगा। ईमेल आईडी को चेंज करेंगे तो फिर से उतना ही क्रेडिट आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, हमने यहाँ से लिया और यहाँ से लेने के बाद क्या किया, यहाँ से हम लोग क्लिक किया, क्लिक करने के बाद, ठीक है, तो यहाँ से क्या है, दूसरा अकाउंट हमारा खुल गया। तो दूसरा अकाउंट खुल गया हमारा, दूसरे अकाउंट में हमने फिर से इसको क्या किया, अब कंटिन्यू विद, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हमने यहाँ से क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमने प्लेजरिज्म का जो आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पर प्लेजरिज्म का ऑप्शन से था, हम कौन सा, हम फ्री वाला, ये फ्री वाला ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, ट्रायल में दे रहा है। ये फ्री वाला ऑप्शन इसने मुझे लगता है खत्म कर दिया, अभी फ्री नहीं दे रहा है, ये पैसों वाला ऑप्शन दे रहा है। बेसिक में हम लोग सिर्फ इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग स्कैन कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो स्कैन कर सकते हैं कि हमने ये सारे क्रेडिट यहाँ पर यूज़ कर लिए ना, इसलिए नहीं दे रहा है। अब ये अपग्रेड मांग रहा है, वो कह रहा है कि एक ही सिस्टम में खुला है बार बार, इसलिए इसको दिक्कत हो रही है। ठीक है ना, तो ये हमारा एनोनिमस वर्जन लॉग आउट।
ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये भी बहुत स्मार्ट है एआई टूल्स। वो कह रहा है कि नहीं नहीं, हम आपको बहुत ज्यादा फ्री में नहीं दे सकते, बस हमने आपको क्रेडिट दे दिया, आप लॉगिन आप कोई सा भी यूज करिए, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन हम आपको एक्सेस नहीं देंगे। तो ये क्या कर रहा है, आपको एक्सेस नहीं दे रहा है। ये क्या कर रहा है, आपको एक्सेस नहीं दे रहा है। इससे देखते हैं, अब वो ये कह रहा है यहाँ से स्टूडेंट एजुकेटर, चलो स्टूडेंट डाल देते हैं, गूगल विद, वो आईडी वाईडी मांगेगा। नहीं, ये बहुत स्मार्ट है एआई टूल, आप इसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि ये एआई टूल्स भी ना बहुत स्मार्ट होते हैं। ये देख लेते हैं कि भाई एक ही कंप्यूटर से 3 लॉगिन से अगर ईमेल से आईडी से कर रहा है तो वो एक ही बंदा है, तो इसलिए फिर उसको एक्सेस नहीं करते। ठीक है, तो आप अपने उस पे कंप्यूटर पे अपने लैपटॉप पे इसको क्या कर सकते हैं, यू कैन चेक इट ना, चेक इट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा और कौन से हमारे पास एआई टूल्स हैं जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, हमारा किधर है ये। अच्छा, अब हमारा कौन सा, ठीक है, प्लेरिज्म डिटेक्टर, नॉट एआई। ठीक है ना, तो ये भी क्या कर रहा है, ये देखिए ये भी बहुत स्मार्ट टूल्स है। तो ये क्या कर रहा है एआई आपको, अब देखो इसने ना, जो लोग हिंदी वाले लोग हैं, दे आर बिलोंग फ्रॉम द हिंदी बैकग्राउंड, और उनको समझ नहीं आता कि हमें इंग्लिश में कहते, तो ये सारी चीजें आपको साहित्यिक चोरी करने वाला, यानी इसने अपने जो टूल का नाम लिख दिया प्लेजरिज्म डिटेक्टर्स को, हिंदी में उसने कर दिया और कहते साहित्यिक चोरी वाला। ठीक है ना, अब हिंदी में हमारे दिया रहा है, इसलिए वो क्या है, साहित्यिक चोरी करने वाला एक टूल से दिया। अब क्या, प्लेजरिज्म डिटेक्शन चेकर, प्लेजरिज्म डिटेक्शन चेकर जैसे हम वहां पर कर रहे थे वैसे ही हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी प्रो का है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ ये थोड़ा हमें क्या करता है, जैसे प्लेजरिज्म चेकर, हम प्लेजरिज्म एआई डिटेक्टर पे गए, हम पहले तो एआई डिटेक्टर, जैसे हम लोग एआई डिटेक्टर पे उस पे जा रहे हैं, एआई डिटेक्टर पे गए, और एआई डिटेक्टर पे हमने यहाँ से अपना कोई भी कंटेंट हमने यहाँ पर पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद हमने उससे ये कहा कि हमें ये बताओ एआई डिटेक्ट एआई कंटेंट, एआई कंटेंट को डिटेक्ट किया आपने। ठीक है ना, तो उसने क्या कर दिया हमें, देखिए अब उसने ये जो हमारे पास एआई का जो ये जो है ना, उसका रिजल्ट हमें उसने दे दिया, और उसने रिजल्ट क्या दे दिया, उसने रिजल्ट बता दिया कि 2% एआई रिटन कंटेंट एंड 98% क्या है ये, 98% ह्यूमन रिटन कंटेंट है। यानी जो कंटेंट हमने पेस्ट किया है यहाँ पर, उसने कहा है कि ये जो कंटेंट है बेसिकली, ये कंटेंट है बेसिकली क्या है, कंटेंट आपके पास जो दिया गया है वो 2% एआई कंटेंट, एआई रिटन कंटेंट है, और उसका 98% क्या है, ह्यूमन एआई जनरेटेड कंटेंट है। तो यानी आपके कंटेंट को बता दिया कि आपका आपका कंटेंट यहाँ पर कैसा है, क्या है। ठीक है ना, तो ये क्या है, प्लेजरिज्म चेकर टूल्स है हमारे पास इसमें। ठीक है ना, इस एआई डिटेक्टर कर दिया, डिटेक्ट एआई टूल्स कर दिया हमने, और इसके अलावा क्या है हमारे पास, प्लेजरिज्म चेकर टूल्स है। अब इसी कंटेंट को हम यहाँ से इससे प्लेजरिज्म चेक कराते हैं। ठीक है ना, अब हमने यहाँ पर इसको डाला, और डालने के बाद हमने इस कंटेंट को लिया और इससे ये कहा लोडिंग। तो अब ये कह रहा है कि हम आपका एआई डिटेक्टर तो चेक कर सकते हैं, लेकिन प्लेजरिज्म जो चेकर है हमारा, वो प्लेजरिज्म चेकर तभी चालू होगा तब यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा शायद, इसमें ना, इसमें पे करने वाला है, पे करने वाला हमारा इसमें क्या है,
तो अब उसने क्या कर दिया, हमें ये प्लेजरिज्म चेकर आ गया, लोड हो गया ये। ठीक है, यहाँ से प्लेजरिज्म चेक कर लिया हमने। तो ये हमारे प्लेजरिज्म को चेक कर रहा है, ठीक है ना। देखिए प्लेजरिज्म चेक कर रहा है ये 6%, 50%। देखिए अब यहाँ पर क्या कर दिया उसने, अब उसने ये बता दिया हमें आपको कि जो आपका प्लेजरिज्म है वो 100% सही है। यानी उसने टोटल वर्ड्स बता दिए, सेंटेंसेस बता दिए, स्पीक टाइम बता दिया 2 मिनट। ठीक है ना। तो ये उसने प्लेजराइज क्या है 0%, यूनिक क्या है इतना परसेंट, और ये क्या है आपका पूरा स्टार्ट न्यू सर्च, चेक द पंक्चुएशंस, डाउनलोड रिपोर्ट। अब यहाँ से इसकी डाउनलोड, जैसे हम लोग वहां पर डाउनलोड रिपोर्ट कर रहे थे, हम इसको भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स को। ठीक है ना, रिपोर्ट्स का डाउनलोड कर दिया, ये रिपोर्ट्स आ गई यहाँ पर। ठीक है ना, ये रिपोर्ट्स आ गई यहाँ पर, और उसने बता दिया देखिए ये रिपोर्ट्स आ गई, उसने कह दिया कि इतने परसेंट इतने वर्ड्स हैं, इतना ये है, और इतना ये कंटेंट आपका ये है, और ये कंटेंट क्या है, इसमें सिर्फ 0% प्लेजराइज है, 100% यूनिक पाया गया। ठीक है ना। तो आप इस तरह से अपने किसी भी कंटेंट को इस तरह से यहाँ से क्या कर सकते हैं, वेरीफाई करा सकते हैं। कोई भी कंटेंट है, कोई चैप्टर है, आपने फ्री में ये थोड़ा सा प्लेजरिज्म, ये जो प्लेजरिज्म डिटेक्टर जो ये .net है ना, तो ये थोड़ा बहुत फ्री में देता है, और बाकी सब लोग को पैसे देना पड़ते हैं। ठीक है ना। क्यूल बोर्ड है, क्यूल बोर्ड से भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो भी पेड वाला, जो मैं यूज कर रहा हूँ वो पेड वाला, इसीलिए आपको बहुत सारी चीजें सही से नजर आ रही हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर आप फ्री वाला करेंगे वो यूज नहीं होगा। तो इस तरह से आप प्लेजरिज्म डिटेक्शंस के बहुत सारे टूल्स के जरिए आप अपने आर्टिकल्स के, अपने रिसर्च के, अपने बुक के सारे क्या कर सकते हैं, प्लेजरिज्म को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह के जो ये है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने प्लेजरिज्म को, अपने अपने उसके प्लेजरिज्म को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। तो आई थिंक इट इज ओके टुडे, और कल हम लोग 4 और अच्छे से टूल्स को, तो ये वाले प्लेजरिज्म डिटेक्टर वाला टूल्स है ये, देखिए ये विदाउट लॉगिन वाला है ना। विदाउट लॉगिन भी आप इतने सारा कुछ कर सकते हैं ना, आपको लॉगिन करने की इसमें जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कि जब आपके पास लार्ज डाटा होगा, जब आपके पास पूरी बुक होगी या पूरा आर्टिकल्स, तो मेरे ख्याल से कर देगा फ्री में, लेकिन बुक नहीं करेगा ये। ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आपको इसका एक प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा, और वो प्रीमियम वर्जन क्या है, मंथली $20 से ईयरली 9.30 मंथली है, यानी ईयरली ईयरली एक एक प्लान है और एक मंथली प्लान है। ठीक है, तभी ईयरली और मंथली प्लान आप जब इसका लेंगे आप, तो ये आपको क्या कर देगा, बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। ठीक है ना। तो तो ये क्या है, इन्होंने अभी तो सैंपल दे रखा है, सैंपल है ओनली। ठीक है ना, सैंपल है, आपको ये सैंपल दे रखा है। सैंपल अगर आप यूज करो, अगर आपको लग रहा है कि दिस इज ओके, देन आफ्टर देन आप क्या कर लो, इससे आप उसको खरीद सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं है ओके, तो आप नहीं खरीद सकते। ठीक है, नहीं खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आगे भी कल भी 3 या 4 जो AI टूल्स है प्लेजरिज्म डिटेक्शंस के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, उसको बताएंगे, और मतलब देखेंगे। तो उसमें यही है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट और पॉपुलर जो टूल्स हैं वो यही है, टर्निटिन है। टर्निटिन बहुत महंगा होता है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन में होता है। क्यूल बोर्ड है, क्यूल बोर्ड यू कैन परचेज, क्यूल बोर्ड को आप खरीद सकते हो ना। क्यूल बोर्ड एक ऐसा टूल्स है जो सिर्फ ना कि सिर्फ इस पे प्लेजरिज्म में काम आता है, बल्कि बहुत सारे जो इसमें टूल्स हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, उसमें आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक इट इज ओके। if you have any questions you can ask me, otherwise we will end it, see you tomorrow. Okay, अगर कोई questions है आपका, if you want to ask something, if you have any doubt regarding this session, so you can ask me, otherwise we will end it. Yes. Hello, sir. Am I audible? Yes, ma'am. Sir, I'm Jamshina from Kerala. I have doubt that to what extent we can trust these tools, or Actually this is among the popular tools, or suppose that if we are using the Ql board is the
very popular tools among the students, research scholars, or that is authentic. Actually, these tools are under the any company act. Actually, this is the not general tools. This is tools is uh, uh, tools exist because there are the company, है ना? Plagiarism detections is also running a company. So you can just for example, uh, you are trust in the Reliance, you are trust in the Airtel, you are trust in the or many more companies. For example, Philips. You are trust in AI, or trust in the Amazon, Flipkart, Myntra, and there is a lot of the website is there. And you are trust in Swiggy, you are trust in Zomato. What you are using these tools, you will be trust definitely. There is actually there is a authentic AI tools which is applicable in all academic pursuit. Whenever you have the report of plagiarism, whenever you will produce in any other, for example, the Turnitin, whenever go to the any institution where is the applicable the वो आपसे मांगे kindly submit your the plagiarism report there. So you can use this plagiarism report for your evidence. This is the tools we are using, है ना? So this is the authenticity of the such type of tools. Okay, ma'am. Okay. Doctor Does साहब, the UGC one question is also there? Does our UGC recognizes these tools? Yes. This is the artificial tools, artificial intelligence tools. The UGC is recognized this use. Actually, you are not go to the UGC. You go to the university whenever you are. Actually you have the any interview call from the universities, colleges, schools, anybody's. But you not go to the UGC, na? So UGC recognize the all AI tools, है ना? डॉक्टर साहब मेरा भी एक क्वेश्चन है, कैन आई आस्क? Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. मैं इंग्लैंड से बोल रहा हूँ, हालांकि मैं भारत से ही हूँ और आपका ही स्टूडेंट हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ से पीएचडी कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे हूँ और जुड़ गया हूँ आपके साथ। Very तो good. मेरा सवाल ये था सर कि आपका जो फोकस है ना, वो फोकस पूरा ये है कि एआई जनरेटेड मटेरियल को हम कैसे प्लेजरिज्म चेक करें, जी, जी। जबकि मैं इस लालच में इसमें आया था कि मैं ये जानूं कि जो मैंने लिखा है उसको मैं प्लेजरिज्म से कैसे बचाऊं। जल्दी में कहीं कॉपी पेस्ट कर लिया, कहीं कहीं जो है प्रूफ किया, कहीं नहीं किया, तो अब मैं अपने मटेरियल को कैसे प्लेजरिज्म चेक से नहीं बचाऊं? नहीं, आप गलत समझे सर, गलत समझे। एक्चुअली जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर ओनली एआई टूल से रिलेटेड ही डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जब आप अपने कंटेंट को क्यूल बोर्ड में या किसी दूसरे एआई टूल्स में डालें, देखिए मैं दो चीज बताई आपको। देयर इज अ टू थिंग्स, वन थिंग्स एआई डिटेक्टर टूल्स और अनदर थिंग इज अ प्लेजरिज्म चेकर, है ना? दो चीज बताई आपने भी किया होगा। तो एआई जो मैं क्यूल बोर्ड में बात कर रहा था, ठीक है ना? जी तो आप क्यूल बोर्ड में डाल के किसी में डाल के आप अपने कोई भी, जरूरी नहीं कि आपका एआई, देखिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपने चैट जीपीटी से कुछ कंटेंट लिया, ठीक है ना? अब आप किसी अपने सुपरवाइजर को दिखा रहे हैं कि सर ये मेरे पास कंटेंट है, लेकिन मैंने इसको चैट जीपीटी से, आपने नहीं बताया उसको चैट जीपीटी से लेगा, लेकिन आपका जो सुपरवाइजर है, आपके टीचर है, ही इज वेरी स्मार्ट। उसने क्या किया, आपके कंटेंट को अगर वो प्लेजरिज्म डिटेक्शन में चेक करेंगे तो वहां पर उसका प्लेजरिज्म चेकर में चेक करेंगे तो उसका प्लेजरिज्म बहुत कम आएगा। लेकिन वो जो उस कंटेंट को, अगर वो स्मार्ट होंगे, उस कंटेंट को एआई डिटेक्टर में डालेंगे तो वो 100% आपका एआई डिटेक्टर कंटेंट है, उनको पता चल जाएगा जो आपने कंटेंट लिया है वो एआई से लिया है कंटेंट, ठीक है ना? लेकिन उसी कंटेंट को आप जब प्लेजरिज्म चेकर में डालेंगे तो वो क्या करेगा, आपके प्लेजरिज्म को बहुत ज्यादा नहीं बताएगा। जैसे अभी हमने प्रैक्टिकल करके बताया आपको, मैंने एआई कंटेंट को लिया तो उसने 100% बताया, लेकिन मैंने जब चैट जीपीटी से प्लेजरिज्म चेकर में डाला तो उसको उसने डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो इसी तरह आपका जो कंटेंट है, आप अपने कंटेंट को इसमें चेक कर सकते हैं और इसकी रिपोर्ट ले सकते हैं। वो आपका अपना कंटेंट है। एक्चुअली इन टूल्स का मकसद ये होता है कि हम अपने कंटेंट को
चेक कर सकें, जब हम हमारे पास जो थर्ड पर्सन के पास जाए तो वो प्योर, मतलब प्योर जाए, यानी कहने का मतलब है वो फिल्टर्ड कंटेंट जाए, है ना। जो प्लेजरिज्म है, आपने एआई से कंटेंट लिया, एआई से कंटेंट करने के बाद आपने चेक किया, और चेक करने के बाद जब आप यहाँ पर आपने इस चीज को पकड़ लिया, फाइंड आउट कर लिया कि ये वर्ड्स यहाँ पर प्लेजरिज्म डिडक्शंस, मतलब एआई डिडक्शंस में आ रहे हैं, उनको पैराफ्रेज कर लिया। पैराफ्रेज करने के लिए आपने अपना एक अच्छा कंटेंट तैयार कर लिया जिसमें प्लेजरिज्म और एआई डिडक्शंस ना हो। और उस फिल्टर कंटेंट को जब आप किसी के सामने प्रोड्यूस करेंगे तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस होगा और वो कंटेंट भी आपका मतलब ऑथेंटिक होगा, और लोग उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। जब आप एआई से जो कोई कंटेंट लेंगे, जब किसी दूसरे के पास ले जाएंगे तो उसको लोग रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां पर क्या होगी, फिर जो आपकी पॉपुलैरिटी है वो डैमेज होगी, है ना। और दूसरी जी चीज, जी जैसे कि आपने कंटेंट लिखा, आप जो कंटेंट लिख रहे हैं उस कंटेंट को आप चेक कैसे करेंगे? आप कंटेंट को चेक करने के लिए आपके पास कोई एक ऐसी मशीन होगी। वो मशीन क्या है? वो आपके पास क्यूल बोर्ड है, टर्निटी है, ठीक है, प्लेजरिज्म डिटेक्टर्स है, और बहुत सारे एआई टूल्स है जो आपके प्लेजरिज्म को चेक कर लेते हैं, और चेक करने के बाद आपको रिपोर्ट देते हैं कि साहब आपका प्लेजरिज्म क्या है, आपके कंटेंट में प्लेजरिज्म है नहीं है। अगर आप अपने लेवल से प्लेजरिज्म को चेक कर लेते हैं तो आप उसको उसको वहां पर सही कर सकते हैं। जी सर। जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि क्यूबोल्ट वगैरह में अपने ओरिजिनल कंटेंट को जो आपने अपने पेन से लिखा है, आपने कहीं एआई से नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, आपने अपने से उसको अपने वर्ड्स में लिखा है, तो क्या ये सेफ है कि मैं अपने थीसिस के मटेरियल्स को क्यूबोल्ट में रखूं और फिर मैं पैराफ्रेज करूं या जो भी काम करूं, अबे तो सर क्या बिल्कुल। ये जी। सेफ रहेगा सर? क्योंकि एआई तो ऑनलाइन चीजें ही लेता है ना सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एआई क्या मतलब, ये थोड़ा ना ऑनलाइन चीज लेगा। भाई आप देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको लोग कंफ्यूज। बच रहे हैं सर कि अरे एआई में हमको कुछ नहीं डालना अपना कंटेंट, नहीं 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 तो वो मेरा कंटेंट जो है इंटरनेट वर्ल्ड में चला गया, तब क्या होगा? इज इट सेफ नहीं नहीं। क्यूबोल्ट यूज करना? एक्चुअली क्या है सर, मैं बता दूं आपको। एक आपको, आप आपकी एज कितनी होगी? 35 सर। 35। आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में सुना होगा, जी। पढ़ा होगा, 1789, है ना। 1789 शायद। जब आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, उस जमाने में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी ना, तो लोगों ने कहा था कि इंसान खत्म हो जाएगा बिल्कुल, देयर विल बी नो नीड ऑफ द ह्यूमन। कहा सब था, नहीं मशीन कहा था? करेगी, सब है ना, मशीन करेगी। सब कुछ मशीन करेगी, सारा कुछ मशीन करेगी। हम्म। लेकिन इंसान की जगह, मतलब इंसान का क्या मतलब है कि इंसान का इन्वॉल्वमेंट कभी खत्म नहीं हुआ। जी। मतलब जो काम था ना वो तेज हो गया, है ना। हम्म। अभी भी लोग कह रहे हैं कि यार साहब एआई आ गया तो इंसान के दिमाग को बिल्कुल खाली कर देगी, इंसान सोचने वाला नहीं होगा। लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि सारी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, वो कौन कर रहा है डेवलप? ह्यूमन तो कर रहा है ना। हम्म। भाई ये टेक्नोलॉजी सारी ये डेवलप कर रहा है, वो ह्यूमन कर रहा है, आदमी कर रहा है। जो इंसान नहीं होगा तो नया कोई इन्वेंशन ही नहीं होगा, नई टेक्नोलॉजी ही नहीं आएगी। भाई कोई आपने एक मशीन बनाई, आपने एआई की मशीन बना दी, लोगों ने चैट जीपीटी बना दिया, जेमिनी एआई बना दी, सारे एआई टूल्स बना दिए। अब वो इंसान का उसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हो चैट जीपीटी में, और जेमिनी एआई या गूगल में किसी में अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो क्या चैट जीपीटी और ये गूगल, जितने भी एआई टूल्स है, जितनी भी मशीन है, क्या काम कर सकती हैं? नहीं। एक चैट जीपीटी को चलाने के लिए कम से कम 2000, देर आर 2000, अप्रोक्सीमेटली 2000 पीपुल से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं एक ओपन एआई कंपनी को चलाने के लिए। हम्म। एआई जो चैट जीपीटी आपके पास आता है, जिससे आप कंटेंट लेते हैं, या कोई दूसरा टूल आता है, उसको चलाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 1500 टू 2000 पीपुल्स आर वर्किंग इज देयर। बताइए, 2000 लोग काम कर रहे हैं उस कंपनी में। जो आपको लगता है यार ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम बदलता जाएगा, नई टेक्नोलॉजी आती जाएंगी, लोग अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे, और कुछ आता जाएगा, और कुछ आता जाएगा। और जो कंटेंट आप यहाँ पर जो, जैसे कि क्विल बोर्ड में है, आप जैसे कि आप अपने कंटेंट को प्लेजरिज्म चेकर के जरिए ही तो आइडेंटिफाई करेंगे। आप कैसे प्रूव होगा? जब आप कोई जाएंगे, प्रूव कैसे करेंगे? आपके पास डॉक्यूमेंट क्या है? आप किसी लाइब्रेरी में जाएं,
और लाइब्रेरी हम्म। में कहें कि साहब मुझे इसका अपने कंटेंट का ना प्लेजरिज्म चेकर करना, मतलब प्लेजरिज्म चेक करवाना है, तो जब आप किसी लाइब्रेरी में जाएंगे, कहीं किसी के पास जाएंगे, वो कहेगा ठीक है आप मुझे अपना कंटेंट दीजिए और मैं आपके कंटेंट को मशीन में डालता हूँ, मशीन चेक करेगा कि आपके जो कंटेंट में कितने % का प्लेजरिज्म है, वही तो चेक करेगा, जी तभी तो आइडेंटिफाई होगा कि भाई जी आपके उसमें चेक है। तो जो प्लेजरिज्म की जो आपको चेक करने की जो बात है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कुछ करता है। हाँ, लेकिन चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है, मैं बता दूं आपको, चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है, अगर चैट जीपीटी में, चैट जीपीटी प्लेजरिज्म चेक का देता नहीं, अगर चैट जीपीटी में कोई भी आप अपना कंटेंट डालते हैं ना, तो वो चैट जीपीटी आपके कंटेंट को सेव कर लेता है, समझ रहे यही हैं? तो प्रॉब्लम जी। नहीं तो चैट, अरे अब भाई मार्केट में बहुत सारी चीजें ना, मैंने आपको 2 चीजें बता दी, एक क्यूल बोर्ड है, जी जी जी। क्यूल बोर्ड का अलग, क्यूल बोर्ड का फीचर्स अलग हैं, चैट जीपीटी के फीचर पर, चैट जीपीटी आपको फ्री में दे रहा है, आप फ्री में मत लीजिए, आपका कोई कंटेंट नहीं करेगा भाई, आप इतना यूज कर रहे हैं फ्री में, वो कंपनी करोड़ों खरबों रुपए खर्च कर रही है और आप तक अपनी फैसिलिटी पहुंचा रही है फ्री में, तो कुछ तो वो अपना करेगी। अगर आप हम्म। करें, अगर आपने उसका आपने अगर उसका वर्जन ले लिया, अगर आप पेड लिया, तो शायद वो फैसिलिटी आपकी आपकी जो प्राइवेसी रखती है वो आपकी आपके कंटेंट की, आपके कंटेंट मतलब पूरा की। सेफ है ना सर? हाँ, इसमें इन सारे टूल्स में सब सेफ है, सब सेफ है, ये आपके अपने ऊपर रहता है सर। आज दुनिया में आप ये बताइए सर, करोड़ों लोग एआई, आप खैर आपके आप जहाँ आप रहते हैं इंग्लैंड वगैरह में, वहाँ तो एआई टूल तो बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर्स होंगे, बहुत ज़्यादा नए नए एआई टूल्स होंगे, है ना, मतलब टेक्नोलॉजी जी इतनी हाई फाई है। जहाँ हम रहते हैं यहाँ तो अभी तो बहुत पीछे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो यहाँ तो फिल्टर होके जब वहाँ पर सारा कुछ हो जाता है, सब कुछ बिक जाता है, तो उसके बाद यहाँ पर आता है फिल्टर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ एआई टूल्स को अब आपको उसमें टर्म एंड कंडीशंस पढ़ना पड़ेंगी, कि भाई टर्म एंड कंडीशंस में ये देखना पड़ेगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेव हो रहा है नहीं हो रहा है, उसमें सेफ है जी। नहीं है, तो वो है। तो और तो देखिए, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसा कोई रिसर्च नहीं है, आप डालो अभी, अब चैट जीपीटी के पास जाओ, आप चैट जीपीटी से पूछो किसी भी चीज के बारे में, तो आपको पूरा सिस्टमेटिकली सारी चीजों को लिख कर देगा। लेकिन ये डिपेंड आप पे करता है ना, आप उससे चोरी करते हैं या उससे आइडिया लेते हैं। जी चैट जीपीटी से आपने फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी से लिखा है राइट अ रिसर्च पेपर ऑन फला 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 फला, तो उसने एक रिसर्च पेपर विद रेफरेंसेस लिख के दे दिया। अब उसको आप कॉपी करके कहीं छपवाते हैं, या फिर उसको आप बहुत अच्छी तरीके से उस पर से सिर्फ एक आइडिया लेते हैं और आइडिया लेने के बाद अपने कंटेंट को बनाते हैं, ये तो डिपेंड आपके मोरल्स पे डिपेंड करता है, आपके एथिक्स पे डिपेंड करता है ना। तो ये सारी सिस्टम है सर, इसमें ये सिस्टम है, ये आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चोरी करते हैं या उससे आइडिया को आप इम्प्रूवमेंट करते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं ना। आपने ये चैट जीपीटी में डाला कि मुझे मैं आई वांट टू राइट ए बुक ऑन दिस टॉपिक, कैन यू सजेस्ट मी टाइटल, तो आपको 10-20 टाइटल लिख के दे देगा, है ना। अब जरूरी तो नहीं है कि वो 10-20 जो टाइटल जो दे रहा है वो हम्म खुद से ऑन क्रिएट करके दे रहा है, वो तो उन टाइटल्स को दे रहा है जो टाइटल्स ऑलरेडी उसके डेटाबेस में अवेलेबल है ना। हम्म और हो हम्म सकता है कि उन 10 टाइटल्स को देख के कोई आप एक ऐसा टाइटल्स क्रिएट कर लो अपने माइंड से, एक आइडिया आ जाए कि एक ऐसा टाइटल अच्छा कर लो जो टाइटल अवेलेबल ही हो, नया नया टाइटल हो जाएगा। तो हम्म एक ये सिस्टम, एक होता है इंसान सोचता रहता है, घंटों सोचेगा, 2 दिन सोचेगा, 4 दिन सोचेगा। पहले क्या होता था, इंसान 10 दिन सोच रहा है, 20 दिन सोच रहा है, उसको टाइटल समझ में नहीं आ रहा है, फिर टाइटल के बाद चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, अब सारा कुछ देख ले रहा है कि भाई चैट जीपीटी आप बता दो मुझे कैसे करना है, तो फिर उसको एक आइडिया हो जाता है कि कैसे लिखना है। तो इससे हम इन सारे एआई टूल से मदद ले सकते हैं, एआई टूल हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो हमारा गोल नहीं हो सकते एआई टूल्स, क्योंकि नहीं इसलिए नहीं हो सकते, किसको इसको भी चलाने वाले ह्यूमन ही हैं, लोग हैं। और जब तक ह्यूमन का ब्रेन जब तक रहेगा, तो एआई टूल्स कभी भी, एआई की टेक्नोलॉजी कभी भी ह्यूमन पे हावी हो ही नहीं सकती। भाई टेक्नोलॉजी तो आपको प्रोग्रेस करेगी ना, हर चीज को प्रोग्रेस करेगी, हर चीज में टेक्नोलॉजी आ रही है, हर चीज में टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो ये है। तो आज का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का, तो इसलिए अल्टीमेटली ये हमारा जो आपका क्वेश्चन था उसका सीधे से सिंपल सिंपल तरीका ये है कि अगर आप क्यूल बोर्ड टर्निटी वगैरह से अगर आप अपना प्लेजरिज्म चेक करते हैं, तो यू आर सेफ। ओके। ओके सर। ओके सर।
ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का? यस, और कोई किसी का क्वेश्चन? ठीक है। And so what about the Shod Shundi, which is a plagiarization detection tool devised by Inflibnet? Can you aware about that? Pardon, actually, I'm not. Shod Shuddhi, which is a plagiarism Okay, detection software. शोध शुद्धि. Yeah, that is devised by Inflibnet Center. It is okay, it is Do you good. have about that? Which tools you are using? Excuse me, sir, I can't hear you. So can you repeat that? Which tools you are using? That is Shod Shuddhi, the Ah, Inflibnet Center devised. yes. Do you aware about that? Can you tell me something if you? नहीं तो actually शोध शुद्धि and शोध गंगा, these tools are basically you can use which tools you are using from the शोध शुद्धि. No, sir. I'm starting to forward my research, so that is why I am asking. Oh, so Yes, sir. you can use there is a lot of the researches is there. You can use and cite it in your research. Mm. You can use मतलब actually there is a शोध गंगा and शोध शुद्धि, there is a thesis, I think the thesis is here. In शोध गंगा is thesis here. शोध शुद्धि is also thesis here. Shodh Ganga is UGC website, I think, Ah. for thesis. वो Inflinet. Shodh Ganga is the usage is a repository of thesis, research thesis, not the plagiarism detection software. Yeah, research thesis reservoir. Yeah. Reservoir, that is. Is it accessible for everyone, Shodh Ganga? Yes. We can download thesis there, sir. You can download, you can log in there and you can load. Actually there is I think there is a you get a membership from the शोध गंगा है ना. After that you can use their original summary at the glance. We require a institutional membership. If I am doing a research in a Calcutta University, I will sign via the Calcutta University's membership. That's it. Yes. You can actually the show Shuddhi is also organized that there is a lot of the program and a training program. Okay, fine. Inflict is also the good मतलब organization which is working on. Actually, I am not working on this, you know. So I have not more knowledge. I will search and I will give you information tomorrow. No, Okay, thank you, sir. I will see it. You know. Is there any, sir, free website for thesis download, sir? Yes, शोध गंगा. That's free. Yes, it's free. You can go there. You can log in there and search regarding any research. You can go there and you can select the university and go to the department and go to the thesis. There is available thesis is free. You can. But I don't know about the शोध शुद्धि, but I know about the शोध गंगा. सर एक छोटा सा डाउट हूँ. शोध गंगा से अभी मैं एक आर्टिकल डाउनलोड करूंगा, पैराफ्रेजिंग करूंगा, थोड़ा सा मेरा नॉलेज अप्लाई करूंगा,
क्या वो पब्लिश करने के लायक हो जाएगी? यस यस यस, जरूर हो जाएगा। उसमें आपको करना क्या होगा, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको थोड़ा सा ना चेक करना पड़ेगा कि आपने जो डाउनलोड किया है उसको पैराफ्रेज किया है, क्या उसमें प्लेजरिज्म की प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर आप प्लेजरिज्म की प्रॉब्लम नहीं है तो यू कैन यूज। थैंक ठीक यू है सर, थैंक यू, ना। थैंक यू सर। But never use others' work, sir. Why are you using others' work? Do your own work. नहीं, यू कैन यूजिंग ईच एंड एवरी वर्क। व्हाट इज नहीं सेइंग नहीं, एक्चुअली। नो नो नो, मैं इसलिए बोला कि मैं अपना नॉलेज भी अप्लाई करूंगा, क्योंकि नहीं आप, हर एक का रिसर्च एक एक शहर में होता है। जी 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 ऐसा जरूरी नहीं है सर। नहीं, ओरिजिनल वो रिसर्च डिपेंड। करो सर, अपना डेटा नहीं नहीं कलेक्शन करो और नहीं लिटरेचर पढ़ो। वो प्रैक्टिस अच्छा नहीं है सर। नहीं नहीं, मुझे वही करना है। मेरे को आइडिया नहीं देखिए है क्या रिसर्च है, का इतना। देखिए मेरे को देखिए डाउनलोड करने प्रैक्टिस। के बाद ही आइडिया मिलेगा, और मेरा रिसर्च मेरे शहर में होगा। उसको रिसर्च रिव्यू बोलते हैं, उसको दूसरे का काम लेके नहीं छापना भाई। मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं मेरा ही काम करूंगा, लेकिन मुझे वो रेफरेंस के जैसा साइटेशन इन्वर्टेड कॉमा में मैं वो डालूंगा। वो लिटरेचर रिव्यू कहलाता है, वो पब्लिकेशन नहीं है। नहीं नहीं, मैं आर्टिकल की एक्चुअली बात कर रहा एक्चुअली हूँ। एक्चुअली एक्चुअली क्या है ना, देखिए मैं बताऊँ आपको थोड़ा सा इसमें ये चीज़ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई अपना रिसर्च वर्क कर रहे हैं ना, जो आप भी रिसर्च वर्क है ना, बेसिकली आपका रिसर्च वर्क भी कहीं ना कहीं से किसी न किसी सारी जगह से साइटेड तो होता है। लेकिन अब अगर आप प्योरली अगर आप कहते हैं कि मैं शोध गंगा से, तो आपको साइटेशन ही ले सकते हैं। आप शोध गंगा से पूरा पीएचडी नहीं ले सकते ना। और दूसरी चीज ये है कि जैसे कि अगर आप कोई भी चैट जीपीटी या किसी से भी कंटेंट ले रहे हैं ना, तो उस कंटेंट को ना आप अपनी नॉलेज के लिए लीजिए। आपने आर्टिकल्स, अपने आर्टिकल, क्योंकि जो जो लोग चेक कर रहे हैं, जो रिव्यूअर है ना, वो एक्चुअली वो लोग भी बहुत इंटेलिजेंट है, और उन वो लैंग्वेज पढ़ के ना समझ जाते हैं कि आपने आर्टिकल्स की जो लैंग्वेज है ना वो कहाँ से ली है, कैसे ली है। आपने चैट जीपीटी से ली है या आपकी अपनी ऑन है ना, तो आप कर सकते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों को आप ना, और उन सारी चीज़ों से मदद ले सकते हैं ना। हमें कोई आर्टिकल लिखना है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक आर्टिकल लिखा, हमने चैट जीपीटी से कहा कि राइट ए आर्टिकल ऑन एआई टूल्स इन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो आर्टिकल वो आपको लिखकर दे देगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता है ना, उसकी अपनी एक एलएलएम है ना, अपनी एक लैंग्वेज मॉडल है उसका। तो उस लैंग्वेज मॉडल के हिसाब से आपको वो सारे आर्टिकल्स लिख के दे देगा, लेकिन जब आप कोई रिव्यूअर होगा ना, तो वो समझ जाएगा कि आपने कहाँ से लिखा है। तो अच्छे आर्टिकल्स, जो अच्छे जो पेपर्स हैं, पब्लिशिंग हाउसेस हैं, तो वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अवॉइड कर। लेकिन हाँ, बहुत सारा कंटेंट आप ले सकते हैं, आप उसको साइट कर सकते हैं। आपने चैट जीपीटी से कुछ लिया है, तो यू कैन साइट द चैट जीपीटी, दिस कंटेंट फ्रॉम गिवन बाय चैट जीपीटी, उसको साइट कर सकते हैं। जेमिनी एआई से लिया, उससे साइट कर, मतलब प्लेजरिज्म को खत्म करने के लिए आप जितना ज्यादा से ज्यादा साइट करेंगे ना, उतने ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप साइट नहीं करेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, और वो फिर प्लेजरिज्म के दायरे में आ जाएगा, प्लेजरिज्म के दायरे में। तो उसको आपको साइट करना है। लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि आप जो भी आर्टिकल लिख रहे हैं, उस आर्टिकल में प्लेजरिज्म की परसेंटेज कितनी है ना। तो प्लेजरिज्म की परसेंटेज अगर आप खुद से चेक कर लेंगे, तो फिर आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। पहले प्रॉब्लम यही होती थी। पहले क्या होता था, लोग क्या करते थे, अब तो स्टूडेंट भी बहुत स्मार्ट हो गए थे, पीपल्स आर नॉट चेकिंग द प्लेजरिज्म। तो क्या करता था कि उनके जो राइटिंग आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स में ना 50%, 40%, 60% प्लेजरिज्म की प्रॉब्लम होती थी। क्योंकि बहुत कभी कभी ना, अगर आप खुद से भी कोई थीसिस या रिसर्च पेपर लिखेंगे ना, तो बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हो जाते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ जो होगा ना, यूनिवर्सल ट्रूथ होती है। यानी अगर आपने अपने थीसिस में 500 500 टाइम अगर आपने एक वर्ड यूज किया जिसका नाम था सनसेट इन द ईस्ट या वेस्ट, जो भी मतलब है ना, ये बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो होते हैं यूज, है ना। वो यूज किया अगर आपने 500 बार, 400 बार यूज किया, तो आपके थीसिस में प्लेजरिज्म की प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। लेकिन क्या करेंगे, जब आप उसे प्लेजरिज्म को डिटेक्ट कर लेंगे, आप देख लेंगे कि 500 बार मैं एक ही वर्ड का यूज कर रहा हूं, तो जब आपको प्लेजरिज्म को डिटेक्ट कर लेंगे, तो वो सारे वर्ड्स को यूज क्या हो जाएगा, उसको रिमूव करके हम पैराफ्रेज कर सकते हैं। और पैराफ्रेज करने के बाद आपके पास कभी कभी होता है ना, इंसान के दिमाग में कोई वर्ड, जैसे कि अब आप क्यूल वर्ड यूज कर रहे हैं, कोई
किसी भी आप एक पैराग्राफ को या एक रिसर्च पेपर को पैराफ्रेज कर रहे हैं तो देयर इज अ लॉट ऑफ द सिनोनिम्स वर्ड। भाई आपके पास नहीं मशीन है, उस पर तो ऑलरेडी सेव है, लेकिन आपके दिमाग में नहीं आ सकते, तो वहां पर आप मशीन का यूज करके बहुत सारे अच्छे और नए सिनोनिम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। उसके उसके सेंटेंस को पैराफ्रेज कर सकते हैं, उसके सेंटेंस को बदल सकते हैं, एक्टिव को पैसिव वॉइस में, पैसिव को एक्टिव वॉइस पे, और बहुत तरह के ग्रामेटिकली बहुत सारे सेंटेंसेस उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक ह्यूमन होने के नाते ना, इंसान इतना काम करने के लिए उसके पास बहुत टाइम चाहिए। जो काम आप 20 घंटे में करते हैं ना, एआई की मदद से उस काम को आप 2 घंटे में कर सकते हैं। यानी आपके 18 आवर्स को सेव करता है एआई। इसलिए एआई इतना सक्सेस है, और ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें एआई का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो आप फ्लाइट हो, ट्रेन हो, रोबोट, मतलब जो भी दुनिया की जो भी चीजें हैं ना, सब में एआई 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 डेवलप हो रहा है, डेवलप होता जाएगा। ठीक है सर? ओके जी सर, जी सर। ओके ओके, आई थिंक इट इज ओके, थैंक यू वेरी मच, है ना। सी यू टुमारो द नेक्स्ट चैप्टर। कल इसी टाइम है सर? Yes, 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 6 p.m. Okay. Okay. Uh, Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.